Mr. Ishank Sehdev is the co-founder and CEO of 18 Solitaire, one of India's fastest growing luxury jewelry brands and the nation's first natural diamond engagement ring specialist to secure funding at the ideation stage. An alumnus of Graphicera University with a degree in mechanical engineering, Mr. Sehdev began his career with the prestigious global placement at Olam International, South Africa. Choosing purpose over predictability, he returned to India to pursue his entrepreneurial vision. Building on the legacy of Swan Mahal Jewelers, he founded 18 Solitaire, a brand dedicated exclusively to bespoke natural diamond engagement rings. Mr. Sehadev's journey, marked by international recognition, including nominations at LOSD London and listings among the top 10 upcoming entrepreneurs of the year by Entrepreneur Street, reflects his belief in purpose driven growth, innovation, and resilience. Thank you so much, TBI team and Graphic Era, for allowing me to uh, talk in front of my juniors and family members, I would say personally, because Graphic Era has never been a university to me. It was always been like a family to me. Though I can see Mr. Some of my friends are also there, and sir, my mentor is also joining over here. I guess just a moment, let me go through um, the screen. Okay. Yeah. Hi, everyone. Ishank Shadeva this side once again. So I was checking out whether Mr. Kapil Sharma is there or not, and he is here, the HOD of mechanical department. Though when I was there in mechanical engineering, he was the mentor and he was the teacher who was lecturer who was teaching me out every single day. And he is here with us. He's joining us today, and I'm glad to speaking. I'm glad to have a conversation in front of you all. So let me start with my journey first, how I ended up into entrepreneurship journey. I would say good evening, everyone. I'm Ishank Shadeva, as ma'am have already told you about my background from graphic and university to entrepreneurship. I would like to have a discussion about how I started from mechanical background, landed into Olam International. That's the highest package in 2013, and post that I ended into entrepreneurship. So I started my journey as a mechanical engineering from Graphica University, 2013 batch pass out. I got placed in South Africa with Olam International at a highest package that year. Though every time it was how to say that means I don't want to make it very boring or something. मतलब ऐसा ना लगे आप लोगों को यार what the hell he's just recitating the words from the screen. So I want to make it a little bit interactive. I want to tell you my personal journey between that, and then I want to move ahead with how we can get it into how to say that a formal discussion, and how we can sort out about like how to build up companies, how to build a startup. But before that, I want to make it very easygoing. I want to make you feel very comfortable. It's not like CEO or 18 Solitaire or Graphic Era Senior, whatever. It's like friend to friend conversation I want to have with you all. So let me tell you how it started. Um, okay, इसके बीच में एक बहुत funny चीज है, which Kapil sir also knows, that I was the only student which always used to get debarred in Graphic Era University. मेरी attendance हमेशा कम रहती थी, and that's why I want to make it very funny and easy going. तो अभी जिनको ये लगता है ना कि अरे यार हमारी attendance कम है, हम लोगों की अटेंडेंस के साथ साथ मार्क्स कम है, या वी आर नॉट डूइंग समथिंग ग्रेट कंपैरेटिव टू आवर क्लासमेट्स और अमंग आवर फ्रेंड सर्कल, तो उनको ये सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है. इफ यू हैव टैलेंट इन यू, देन इस कोई फर्क नहीं पड़ता व्हाट यू आर डूइंग इन योर एकेडमिक्स, बट यस यू हैव टू वर्क हार्ड विथ एवरी स्टेप यू आर मूविंग अहेड. तो मेरा हमेशा से जो जर्नी रही वो ग्राफिक एरा में डिबार्ड रहा. मैं 4 साल में ऑलमोस्ट डिबार्ड था. उसके बाद भी हाईएस्ट पैकेज लैंडेड हुआ, और उसके पीछे का रीजन ये था, आई वाज मेजरली फोकसिंग टुवर्ड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज. और मेरे अंदर वो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी इट वाज फ्रॉम सिंस चाइल्डहुड. कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं बताऊंगा, मतलब कुछ ऐसी चीजें थी जो मेरे को लगता था कि हाँ, मतलब इस चीज को सेल आउट करके मैं आई कैन मेक मनी, या आई कैन डू बिजनेस इन दिस. आई वाज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट बिजनेस. सो ये जो माइंडसेट है ना, इट कम्स फ्रॉम विद इन. नो वन कैन टीच यू, नाइदर मी नॉर मुकेश अंबानी. ठीक है, वो आपको अपने अंदर से ही आएगा. उसके लिए यू हैव टू थिंक फ्रॉम इनसाइड
though we will be discussing around 6 topics over here about discipline in entrepreneurship journey. But उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें पूछना चाहूंगा. I'll ask a few of you to raise hands. How many of you are thinking to start up your own company in next coming 4 to 5 years? Mr. Sachin, Jia. Okay, let me unmute Sachin ji. Where is? Okay, Jia. Ma'am, can you just unmute Jia Sinha, ma'am? Hello, sir. Hello, everyone. Hi, good evening. So, Shrey Mehra is also there. Yeah. So, Jia ma'am, I want to understand one thing. मतलब मैं अपनी story तो बताऊंगा ही और I will talk about the discipline what we should put into startup का company. But ये entrepreneurship का जो एक कीड़ा बोलूंगा मैं इसको, ये होता है. तो वो कीड़ा जो है वो कहाँ से आया और आपने क्या सोचा कि मतलब I want to start something of my own first. So actually, my father is a businessman. Okay. तो उनकी मतलब वो स्मॉल स्केल बिजनेस है, उनका बहुत बड़ा नहीं है, वो पटना बिहार में उनका, बट वो वहाँ के अच्छा है. तो मैं उनको बचपन से देखते आ रही हूँ, मतलब वो वन मैन आर्मी आप बोल सकते हो. उन्होंने मतलब 2002 से लेके अभी तक अपना जो स्केल बढ़ाया है उस हिसाब से, तो उन्हीं को देख के इंस्पायर हुई हूँ. वही मेरी रोल मॉडल है. एंड प्लस अब थोड़ा सा जैसे मेरे फादर को लगता है कि आप 9 to 5 जॉब करो, उनको लगता है कि एसी में बैठ के काम करो, तो उनके लिए ज्यादा वो है. पर मुझे वो नहीं करना है. 9 to 5 एक ही बैठ के, मतलब 40 साल में उतना नहीं कर सकती. Yes, I will work in a 9 to 5, but I want to have my own company, my own employees. So yeah, that's why. That's something really amazing जिया. बट उसके बीच में मैं एक चीज बोलूंगा, जैसे 9 to 5 वाली बात है ना, वो आती है मतलब जब हम कॉलेज टाइम में होते हैं. इवन दो इट वाज देयर इन मी एज वेल दैट नहीं नहीं आई कांट डू 9 to 5 जॉन. आई डोंट वांट टू बी इट मोनोटोनस. आई वांट टू मेक इट समथिंग वेरी डिफरेंट एवरी सिंगल डे. बट in entrepreneurship it is more like to have a job comparative to having a business. If you are looking forward to start something of your own, as in वहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मैंडेटरी है और उसी बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. व्हाट डिसिप्लिन आई एम टॉकिंग अबाउट. Instead of 9 to 5, I call it 9 to 9 job. I'm still working. And everyone into this industry is always on toes. ठीक है, वो हमेशा आपके मतलब अपने काम के लिए ना, यू डोंट हैव टू थिंक कि हमें 9 to 5 जॉब नहीं करना है या हमको 9 to 9 जॉब नहीं करना है. आई वांट टू मेक इट. एक तो इजी लाइफ नहीं है. एंटरप्रेन्योरशिप इज नेवर बीन अ इजी लाइफ. इट इज मोर ऑफ हर्डल्स, डिफिकल्टीज, एंड आई वुड से कंपैरेटिवली इट्स अ क्राउन ऑफ थ्रोन. रीजन बिहाइंड, अगर आप उस चीज को डिसिप्लिन के साथ नहीं चलोगे देन 100% यू कांट मेक इट. और एक ना जज्बा जो बोलते हैं ना, जो अंदर जज्बा होना चाहिए. मतलब जैसे मैंने बताया, आई वाज डिवाइडेड थ्रू आउट 4 years. इट वाज रीजन दो आई वाज हैविंग अ होम सिकनेस, तो मैं घर पे बहुत ज्यादा जाता था. माय होम टाउन इज मेरठ. ग्राफी कह रहा उस समय देहरादून से मेरठ इज ऑलमोस्ट 6 hours जर्नी. नाउ डेज इट इज ओनली 3 hours. तो मेरा टू एंड फ्रो इतना रहता था कि मेरे एग्जाम्स छूट जाते थे. बट वो अंदर कीड़ा था, वो डिसिप्लिन था, वो एंटरप्रेन्योर स्पिरिट था, that I landed into highest package. Post that I was living a very luxurious life over there in South Africa. Post that I was placed in London as well. But then I thought of no, I should start something of my own. क्योंकि उससे मेरे को ना लिबर्टी मिलती है अपने हिसाब से जीने की. वो 9 to 5 वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक है, बट वो आपको लिबर्टी जो चाहिए ना अपने हिसाब से जीने की, एंड टू एंटर इनटू सेगमेंट जहां पे आप एक लिमिटेड पोर्टफोलियो से निकल के अनलिमिटेड पोर्टफोलियो तक जा सकते हो. ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट विथ माय सेशन फर्स्ट. आई कम टू यू श्रेय आल्सो. आपका 2 बार मैंने हाथ रेस देखा श्रेय, सो आई कम टू यू पोस्ट हैविंग अ सेशन. ओके, सो मैं वैसे ये बहुत मैंने क्या बोला, आई डोंट वांट टू मेक इट अ वेरी डिसिप्लिन्ड वन इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ सेशन ओवर हियर, बट कुछ सेक्शंस हैं जिसके बारे में डिस्कस करूंगा. फर्स्ट इज डिसिप्लिन एज अ फाउंडेशन. सो व्हाट इट इज. Discipline is always not showing up every single day. It is more about keeping yourself involved every single second. ठीक है, अगर आप if you are starting something of your own, कोई भी आपके माइंड में बिजनेस आइडिया है, it work with every business single idea. You have to put yourself 100% into it. Even things are boring, it becomes hard, it becomes uncertain, but still you have to push yourself hard. You have to start things again and again. You have to
be consistent to deliver the best out of you. When I started, I wasn't there the smartest or the most experienced into the industry, क्योंकि मेरा भी फैमिली बिजनेस ज्वेलरी बिजनेस था. बट ज्वेलरी बिजनेस कैसा था? इट वाज मोर ऑफ अ फैमिली काइंड ऑफ बिजनेस. एज इन ठीक है, मतलब वी हैव शोरूम एंड उस पे फादर माय ब्रदर वो यूज्ड टू वर्क एज एन सेल्समैन रख के ये सब चीजें. बट देन आई थॉट व्हेन आई वाज देयर इन लंदन, आई हैव सीन अ ब्रांड टिफनी. अगर आप लोगों ने सुना हो, एक टिफनी ब्रांड है. इट इज वर्ल्ड्स एंगेजमेंट रिंग स्पेशलिस्ट ब्रांड. तो मैंने सोचा यार इंडिया के अंदर ऐसा क्यों नहीं है. हम लोग क्या करते हैं एंगेजमेंट रिंग के लिए, हमारा वही एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है कि जाओ अपने पुराने सुनार के पास, जो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि वहां जाओ और एंगेजमेंट रिंग जाके चूज कर लो. बट देयर इज नो वन स्टॉप सॉल्यूशन जहां आप जाके डिजाइन चेक कर पाओ, जहां आप ऑथेंटिसिटी चेक कर पाओ, जहां पे जाके आप सर्टिफिकेशन, बायबैक गारंटी, ये सब चीजें ले पाओ. और उसके साथ साथ डिजाइनिंग एंड द क्वालिटी मैटर्स. दैट्स व्हाई 18 सॉलिटेयर कम अप इन माय आइडिया. आई वर्क हार्ड विद स्वर्ण महल ज्वेलर्स, दैट इज माय फैमिली शोरूम. मैंने 3 साल तक ये प्रोटोटाइप वहां पे लॉन्च करा. वी हैव मेंशन्ड दैट वी आर स्पेशलाइज्ड इन एंगेजमेंट रिंग्स, और उसका रिजल्ट मैंने देखा कि हमारी सेल्स जो है वो 4x हो गई इस प्रोटोटाइप की वजह से. बिकॉज पीपल वर फीलिंग दैट दे आर स्किल्ड एंड दे हैव समथिंग डिफरेंट. मींस स्पेशलाइजेशन इज अ टर्म जो आपको बिल्कुल डिफरेंट बनाती है. वो मेंशन करने की वजह से स्पेशलाइजेशन, पीपल यूज टू कम टू अस. अच्छा ठीक है, एंगेजमेंट रिंग की आपकी स्पेशलिटी आप दिखाइए, क्या चीज है आपके पास में डिफरेंट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. एंड दैट्स हाउ वी मल्टीफोल्ड आवर सेल्स. Post that, I thought, okay, let me start something into this domain. That's how I entered into 18 Solitaire. I got it registered in 2023. और वो पूरा विजन मैंने सेटअप किया हुआ था. आई लेट यू नो द जर्नी अबाउट 18 सॉलिटेयर एज वेल, कि कैसे कैसे वो चीजें हुई. बट मैं आपको 2-3 चीजें बीच में बताना चाहूंगा. दैट हाउ आई एंडेड गेटिंग इंडियाज फर्स्ट प्री सीड फंडिंग इनटू दिस डोमेन. बिकॉज ज्वेलरी डोमेन ऐसा है, अगर आप देखेंगे तो कैरेटलिन है या ब्लू स्टोन है या मेलोरा है, ये जितने, या कैंड्रे है, ये जितने भी स्टार्टअप्स हैं, उनका 4 से 5 साल का रेवेन्यू रहा पोस्ट दैट दे वर एबल टू रेज फंड्स, आइदर प्री सीड और पोस्ट सीड. ओके, और फैमिली फंडिंग. बट मेरा क्या था, आई वॉज हैविंग जस्ट अ प्रोटोटाइप आइडिया. इट वॉज नेवर बीन ऑन फिजिकल ग्राउंड, बट आई वॉज एबल टू रेज फंड थ्रू इनोवेशन वेंचर कैपिटलिज्म एंड 2 more VCs आर देयर, सीड फंडिंग. उसके पीछे का रीजन वही मैं आपको बार बार बोलूंगा, दैट यू हैव टू बी डिसिप्लिन. यू हैव टू शो अप एवरी सिंगल डे, वेदर इट इज बोरिंग जैसे मैंने बोला, या वो आपको हार्ड लगे, अनसर्टेन लगे, मैंने उसको छोड़ा नहीं. आई वॉज वर्किंग कंटिन्यूसली हार्ड ऑन टू माई सब्जेक्ट. उससे पहले आई स्टार्टेड बिल्डिंग हमारा जो EBO है, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट इन इंदिरापुरम. वी हैव स्टार्टेड बिल्डिंग दैट सेम. इंदिरापुरम में हमारा फिजिकल आउटलेट है एक. उसके बाद राइट नाउ वी आर एट 32 मोर आउटलेट्स, standing on 32 more outlets. That time मेरे पास में, though I was not looking forward for family support from my parents or my family into specifically into, because ये बहुत high capital intensive product line होता है, तो पैसा तो बहुत लगता. तो मैंने सोचा यार अपनी फैमिली से तो मैं नहीं बोलूंगा. though I was earning well when I was there in Graphic Era, तो मेरा पैकेज जो लगा था, it was 23 lakh in 2023. 2013 के अंदर 23 लाख पर एनम का पैकेज लगा, और वो विद इन अ ईयर 35 लाख पर एनम हो गया. दैट वाज रियली ट्रेमेंडस. उस मोमेंट पे तो अच्छा था, मतलब आज के टाइम पे इट साउंड्स वेरी नॉमिनल, बट उस समय 2 लाख रुपए महीना इज लाइक के बहुत अच्छा खासा पैकेज था. आज के टाइम पे वो 6-7 लाख रुपए महीने का बनता है, जो उस समय 2 लाख था. तो उसके बाद 1 साल के अंदर ही हमारी ग्रोथ हुई. आई बिकम असिस्टेंट मैनेजर से आई बीन टू पाम ऑयल इंडस्ट्री के अंदर मैं गया था, वहाँ पे मैनेजर की पोस्ट ली. और वो अच्छी खासी, मतलब आई हैड अ सेविंग एंड अर्निंग्स, बट उस सेविंग के साथ में ना स्टार्ट नहीं हो सकता था 18 सॉलिटेयर. दैट्स व्हाई आई थॉट कि ठीक है, वेयर शुड आई पुट माय सेविंग इन. आई पुट दैट सेविंग इनटू द फिजिकल स्टोर. वो बिल्ड करा पूरा फिजिकल स्टोर. उसके बाद में आई वेंट टू VCs, आई वेंट टू इन्वेस्टर्स टू रेज फंड. मतलब मेरे को यही था लास्ट में, दैट नाउ आई एम आउट ऑफ माय कैश एंड दिस इज द ओनली लास्ट ऑप्शन. आई हैव टू रेज फंड टू गेट द इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री लेने के लिए यू हैव टू पुट इनटू दिस स्पेसिफिक डोमेन 5 to 6 year. और उतना फंड रेज कर, उसके लिए आई कांट आस्क माय फैमिली, सो आई हैव टू गो फॉर अ फंड रेजिंग इटसेल्फ. दैट्स हाउ मैंने फंड रेज किया, और I this is journey of 18 solitaire started. So
अभी जैसे मैंने बोला हम 6 सेक्शन में इस टोटल डिस्कशन को डिवाइड करेंगे. फर्स्ट इज डिसिप्लिन एज अ फाउंडेशन. डिसिप्लिन इज द फाउंडेशन. एज आई सेड कि डिसिप्लिन क्यों मैंडेटरी है. वो डिसिप्लिन जो मैंने आपको बताया, इस पूरे टास्क के पीछे डिसिप्लिन का मतलब यही है दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. कितना भी वो बोरिंग हो, कुछ भी हो. अब आप सोचो, मतलब थिंक अबाउट फिटनेस. ठीक है, मतलब एज इन यू आर लुकिंग टू गेट एब्स, दो आई एम नॉट अ जिम फ्रीक गाय. मतलब मैं तो डंबल भी नहीं उठाता हूँ. लेकिन बात करने के लिए, एग्जांपल देने के लिए अच्छा टॉपिक है ना, कि ऐसे अच्छा सोचो किसी को एब्स चाहिए तो कैसे लाएगा एब्स जाके. महीने में एक बार जिम जाके तो नहीं ला सकता ना. यू हैव टू बी रेगुलर, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. So that is, if you have a set goal in your mind that I want to make this company, then you have to be consistent. And what consistency it needs? Consistency in terms of social presence, consistency in terms of customer acquisition. आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. जो हम कैक बोलते हैं ना, कैक इज जस्ट सिंगल टर्म. कैक के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको, किसी भी आप बिजनेस में जाइए, until unless you are not having customer for that business, इट हार्डली मैटर्स कि आपका कितना अच्छा प्रोडक्ट लाइन है, कितनी अच्छी आप सर्विसेज दे रहे हैं. अगर आपके पास कस्टमर ही नहीं है तो वो बिजनेस फेल है. दैट्स अ फेल मॉडल. अब उस मॉडल को सरवाइव कराने के लिए या उस मॉडल को एक्टिव करने के लिए यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. यू हैव टू बी वर्किंग हार्ड एवरी सिंगल डे इन टर्म्स ऑफ कैसे आप लाओगे. चलो अभी मैं फिर दोबारा ये क्वेश्चन आप लोगों से करता हूँ. अच्छा श्रेय, आई वांट यू टू अनम्यूट योर माइक नाउ. कैन यू? Shrey, can you please raise your hand? I'll give you the permission. Yes, you'll be able to speak now. Good evening, sir. गुड इवनिंग श्रेय. प्लीज टेल मी. हाँ श्रेय, अभी आपने उस टाइम हाथ उठाया था दैट आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अप माय कंपनी इन नेक्स्ट 4 to 5 years. सो Yes. क्या कुछ स्पेसिफिक डोमेन है जिसमें आप वर्क करना चाहते हैं? So for now मैंने एक मेडिकल सेक्टर में प्लान कर रखा था. ओके. बट ऑल्दो बिकॉज वहाँ पे बहुत सारा सर्टिफिकेशन एंड ऑल चाहिए तो पॉसिबल नहीं हो रहा. बट स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ, पिच कर रहा हूँ अपने आइडिया. हम्म. तो मैं ट्राई कर रहा हूँ और रिसर्च कर रहा हूँ कि उसको जो मैं प्रोटोटाइप सोच के चल रहा हूँ उससे क्या बेटर कर सकता हूँ उसे. ओके, सो यू हैव अ प्रोटोटाइप रेडी इन योर डोमेन. लाइक नॉट इन फिजिकली बट या कैसे मोटा मोटा मेरे पे भी है कि हम कैसे कर सकते हैं. बिकॉज मैं भी उतना टेक हार्डवेयर पार्ट में मैं उतना एक्सपर्ट अभी हूँ नहीं सर. अच्छा, Yes. साउंड्स गुड. अभी इसी चीज के लिए, मतलब देखिए, टैलेंट एंड आइडियाज आर कंपैरेटिवली कॉमन. ठीक है, बट कंसिस्टेंसी इज रेयर. तो आप उस चीज में अगर कंसिस्टेंट हैं, एज यू सेड कि मैं अभी उस प्रोटोटाइप को डेवलप कर रहा हूँ, आगे उस प्रोटोटाइप में और वर्क करना चाहता हूँ, उसको और वेरीफाई करना चाहता हूँ. दैट्स हाउ यही कंसिस्टेंसी, यही डिसिप्लिन इज मैंडेटरी टू हैव दैट एंटरप्रेन्योर्स माइंडसेट. ठीक है, अगर आप उस चीज पे रेगुलर वर्क कर रहे हैं, अगर आप उस चीज को रेगुलर, यू आर थिंकिंग इन दैट वे के ठीक है, मतलब अभी मेरा प्रोटोटाइप रेडी नहीं है, इट इज नॉट फीजिबल इनफ, बट मैं हार नहीं मानूंगा. आई विल वर्क, आई विल कीप वर्किंग ऑन इट until and unless I don't make it how to say a perfect product. A perfect product के बाद what comes next? It is customer acquisition. Customer acquisition as a नॉट अबाउट एक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो कैक होता है ना, वो उसके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. बट कस्टमर एक्विजिशन कैसे आता है, वो कोर बिजनेस कॉन्सेप्ट से आता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड. श्रेय, यू कैन अनम्यूट योर माइक नाउ. म्यूट योर माइक नाउ. I'll डिस्कस दिस लेटर. सो उसके अंदर क्या होता है, वो कोर बिजनेस कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए दैट अगर मेरे को इस प्रोडक्ट को मुझे यूज करना है तो ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, अब आप जो भी मेडिकल डिवाइस, आपने कुछ भी जो भी प्लान किया है, हमारे ग्राफिक एरा से एक मेरे जूनियर हैं, ही इज डूइंग फिनोमिनल फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट इटसेल्फ, जिन्होंने वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ईसीजी मशीन बनाया है. ठीक है, शायद आप लोगों को पता होगा, मतलब इट इज सच अ ब्रेक थ्रू, है ना वो, मतलब हम लोगों के लिए. We are having Nitin tomorrow. Like he's We joining are us having off. events. Yeah, I know. That's something great. Having offline And yes, tomorrow. you have to join his session for sure, because that is something from where you will get this idea. You all, I'm talking to you all guys. मतलब आपको वो join करना ही चाहिए. Vipin
is, I personally say, he's a phenomenal guy. Phenomenal in terms of his mental health. Mental health as in he is very interactive, very smart. Okay. और वैसे ग्राफिक एरा के बच्चे स्मार्ट होते ही हैं तो हार्डली मैटर्स वो आप सब लोग भी हो एंड यू विल ट्रूली मेक द थिंग्स आउट इन फ्यूचर। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप क्या प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, एज श्रेय सेड यू वांट टू मेक समथिंग इनटू मेडिकल डिवाइसेस। तो वो क्या प्रॉब्लम डिस्कवरी आप देखिए पहले, आइदर आर यू सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ईसीजी समथिंग जिसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है, जो हर घर में आज के टाइम पे एक ब्लड प्रेशर मशीन की तरह मैंडेटरी हो गया है। वो किस वजह से हो पाया, तो कस्टमर एक्विजिशन वहां से अपने आप ही आ गया, आपको उसके लिए वर्क नहीं करना पड़ा, उसके लिए यू डोंट हैव टू एड रन एड्स और समथिंग। वो अपने वो क्योंकि वो एक इनोवेशन था। मेरा प्रोडक्ट इज नेवर बीन एन इनोवेशन ऑन अ ट्रू साइड, क्योंकि एंगेजमेंट रिंग या डायमंड रिंग इनोवेशन में नहीं आती है, बट वो कंजप्शन में आती है। कंजप्शन में कैसे है कि शादी तो सभी को करनी है, आजकल की जनरेशन ना करना चाहे वो अलग बात है, लेकिन अधिकतर तो हर कोई ये है ना कि एक टाइम पे जाके सबको शादी करनी है। अब शादी करने के लिए स्पेशलिटी अभी क्या हो गया, हम इतने चूजी हो गए हैं कि त्योब्रोमा जाना है अपने को केक खाने भी, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, राजपुर रोड जाके नहीं खाओगे, वहां पे भी यू विल गो टू सम ब्रांड। अगर आपको कॉफी भी पीनी है तो यू विल गो टू स्टारबक्स और सम ब्रांड। यू नीड टू हैव दैट ब्रांड एसोसिएशन विद योर सर्टेन स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अभी इंडिया के अंदर वो ज्वेलरी सेगमेंट में नहीं था। यू हैव दैट ब्रांड टैगलाइन इन दिस, नॉट स्पेसिफिकली इन दिस डोमेन। हाँ, अगर किसी को शादी की ज्वेलरी लेनी है तो गो टू तनिष्क, किसी को मॉडर्न ज्वेलरी लेनी है दे गो टू पीसी, ठीक है। किसी को मॉडर्न शादी की अफोर्डेबल ज्वेलरी लेनी है दे गो टू रिलायंस, या किसी को बिल्कुल ट्रस्ट फैक्टर है कि हाँ ये मेरा फैमिली ज्वेलर है, देन दे गो टू देयर फैमिली ज्वेलर। स्पेशलिटी आप बताइए, बिफोर 2023 कोई ऐसी कंपनी थी जिसपे आप बोलते हो हाँ मेरे को एंगेजमेंट रिंग की स्पेशलिटी मिलेगी? नहीं। दैट्स हाउ 18 सॉलिटेयर केम इन्फॉर्मेशन, जहां पे हमने पहले प्रॉब्लम डिस्कवरी करा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए कोई स्पेशलिटी नहीं है, कोई ब्रांड एसोसिएशन नहीं है। दैट्स हाउ वी एंटर्ड इनटू 18 सॉलिटेयर, ठीक है। अब उसमें क्या करा कि एक स्पेशलिटी थी, अभी इसके अंदर मैं बताऊंगा कि क्या क्या हमको प्रॉब्लम भी आई रन करने में, क्योंकि बहुत कैपिटल इंटेंसिव मार्केट है, एकदम से आपको कस्टमर नहीं मिलते। जैसे इनोवेशन में मैंने बोला, इनोवेशन में यू डोंट हैव टू रन एड्स, यू डायरेक्टली फाइंड कस्टमर बिकॉज इट इज नीड ऑफ समवन, है ना। एंगेजमेंट रिंग इज अ नीड, बट उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन और भी थे। तो वी हैव टू रन एड, वी हैव टू बर्न द थिंग्स आउट, जिसे बर्न बोलते हैं ना, कैश बर्न, वो बहुत ज्यादा होता है इस इंडस्ट्री में। हम फंड रेज तो कर लेते हैं, लेकिन फंड रेज करने के बाद में उस कैश बर्न की वजह से कंपनी हमेशा नेगेटिव में, आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका पोर्टफोलियो दे आर नेगेटिव, नेगेटिव एज इन दे आर बर्निंग कैश आउट। उनका ओवरऑल अगर आप टर्नओवर देखेंगे इट इज मोर देन 100 CR, बट उनकी प्रॉफिट अगर आप लास्ट में नेट प्रॉफिट पे जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी पे जाएंगे, इट इज -10%, -8%। और दे आर उन्होंने इतना बर्न करा, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, दैट इज अगेन कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, योर मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, योर रन रेट। ओके, उस चीज को हमको डिटरमाइन करना चाहिए सबसे पहले। So I'll come to the second point, core business concept, as I was talking about. Okay, let's move to some essentials. A founder doesn't need to be an MBA. ठीक है, though I have completed my MBA from Stanford, London, but MBA होने से ही आपका mindset जो है वो business वाला नहीं हो सकता। अभी जैसे मेरी last बात, I had a word with Jia, so she said कि मेरे अंदर वो spirit कहाँ से आई, वो spirit उनके अंदर उनके father से आई, क्योंकि वो वन मैन आर्मी उन्होंने देखा, हाउ ही हैंडल्ड दिस बिजनेस, जस्ट अ सिंगल पर्सन हैंडल्ड अ टोटल बिजनेस आउट, है ना। तो वो माइंडसेट अगर आपके अंदर है, वो बिजनेस माइंडसेट है, देन यू कैन इजीली सिंप्लीफाई द थिंग्स। उसमें क्या क्या आता है, आपका रेवेन्यू मॉडल आता है। एवरी बिजनेस नीड टू मेक मनी इन 3 ways। कोई भी बिजनेस मॉडल है वो 3 वे में ही पैसे बना सकता है, आइदर थ्रू ट्रांजेक्शन, द वे आई एम मेकिंग मनी, ट्रांजेक्शन एज इन कस्टमर आर बाइंग माई स्टफ, दे आर पेइंग मी आउट फॉर माई स्टफ। सेकेंड इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या होता है, ठीक है, मैं अपने उसमें तो नहीं जा सकता सब्सक्रिप्शन में, हम बात करते हैं नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म की। वो आपको सब्सक्रिप्शन बेच के कमाते हैं, दे आर नॉट सेलिंग यू एनी प्रोडक्ट। अब उसके बाद आता है हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड कैसा है कि जो सब्सक्रिप्शन भी बेचे और आपको ट्रांजेक्शन भी बेचे, है ना। अब जैसे ट्रांजेक्शन और सब्सक्रिप्शन का एक हाइब्रिड मॉडल का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जोमेटो हो गया, है ना। अब वो आपको खाना भी बेचता है प्लस आपका सब्सक्रिप्शन भी बेचता है। तो इन 3 तरीके से ही कोई भी बिजनेस जो है वो पैसा बना सकता है।
तो हमारा जो बिजनेस है 18 सॉलिटेयर, इट मेक मनी थ्रू ट्रांजेक्शन। अब उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, एज आई सेड, कि हमको स्टार्ट करने के बाद में व्हाट प्रॉब्लम आई फेस्ड इन दैट स्पेसिफिक डोमेन। कस्टमर एक्विजिशन बहुत ज्यादा था, मार्केटिंग स्पेंड बहुत ज्यादा था, उसके अलावा हमारे यहाँ पे इट इज कैपिटल इंटेंसिव एज आई सेड, तो बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अपने को रखने पड़ते हैं। 5-6 CR के बाद भी लोग बोलते हैं आके, अरे भैया और दिखाओ। और ये ज्वेलरी डोमेन में इतना कॉमन है ना, अरे भैया और दिखाओ। अरे भैया कहाँ से और दिखाएं यार मतलब ये इतना पैसा लगा चुके हैं। तो दैट्स हाउ फिर आपको ना कुछ यूनिकनेस लानी पड़ती है। वो यूनिकनेस हमने क्या लाए, और वो कहाँ से आती है? हमेशा जब भी आप कहीं जाके स्टक हो जाते हैं ना, वही डिसिप्लिन आपके काम आता है। फिर से हम फर्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, डिसिप्लिन कैसे काम आता है। मैं एक पॉइंट आ गया कि मेरे पास रन रेट ही नहीं बचा था। रन रेट एज इन के वी आर आउट ऑफ कैश, क्योंकि हम इतना स्पेंड कर चुके थे मार्केटिंग में, और जो मेरा पैसा था वो इन्वेंट्री में लगा हुआ था। तो मैं पैसा कहाँ से लाऊं, क्योंकि सेल तो आ नहीं रही थी। सेल क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि हम मार्केटिंग में स्पेंड करने के बाद में हमारी जो कंपनी की ये है, क्या बोलते हैं, अमायरा दस्तूर एक्ट्रेस है, आपने अगर देखा हो, शी इज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर आवर कंपनी। तो वहां पे हमने इवेंट पे बहुत पैसा खर्च कर दिया, बहुत अच्छा प्रमोशन कर दिया, शुरू में लोग आए, लेकिन वो रिपीट रेट नहीं आ रहा था उस चीज का। रिपीट रेट इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि ये डेली कंजप्शन प्रोडक्ट नहीं है, इट्स ईयरली, मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम कंजप्शन प्रोडक्ट फॉर पीपल, है ना। उस वजह से हमारे को रिपीट कस्टमर नहीं आ रहा। तो हमने क्या प्लान आउट करा कि नहीं यार, चलानी तो है कंपनी, कैसे चलाई जा सकती है। हमने एक नया इसके अंदर वर्टिकल स्टार्ट कर दिया, दैट इज B2B वर्टिकल। अभी तक क्या है कि जितने भी, अगर कोई, एनीवन फ्रॉम ज्वेलरी बैकग्राउंड ओवर हियर, कोई है? इफ एनीवन इज देयर, कैन यू जस्ट रेज योर हैंड? अच्छा, आई गेस ज्वेलरी बैकग्राउंड से तो कोई नहीं है। ठीक है, मैं मिस्टर खुशी, मिस खुशी, सॉरी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? शालिनी मैम, कैन यू जस्ट अनम्यूट खुशी मैम? हेलो सर। या हाय खुशी मैम। हाय सर। सर एक्चुअली मैंने क्वेश्चन पूछने के लिए हैंड रेज किया था। आई एम नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम एनी ज्वेलरी बैकग्राउंड। कोई सुनिए, क्वेश्चन पूछ लीजिए सर एक्चुअली आई एम वेरी फाउंड ऑफ ज्वेलरीज लाइक डायमंड्स एंड ऑल। तो मुझे ओके। इन फ्यूचर, हाँ, अगर कुछ करना है इसमें, अभी तो मैं सेकंड ईयर में हूँ, बट लाइक मुझे क्या, लाइक 5 से 6 सालों में ऐसी क्या स्पेशलाइजेशन, मतलब किन किन टॉपिक्स पे ध्यान देना चाहिए तो आगे मैं कुछ कर पाऊँ इस इंडस्ट्री में। ठीक है, देखिए खुशी मैम, इसमें ऐसा है, कोई भी लग्जरी सेगमेंट इंडस्ट्री, आइदर क्लोथिंग, आइदर ज्वेलरी, आइदर शूज और बैग्स, जैसे मतलब लड़कियों में तो बहुत ज्यादा क्रेज है ना, यू गो फॉर शनाल, यू गो फॉर यस सर। हमेस, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, वाइफ को पता है मेरी ज्यादा, शी कॉल इट हमेस, लुई विटॉन, व्हाटएवर इट इज। तो वो ब्रांड बिल्डिंग कैसे होता है, वो उस डोमेन में आपको जाने के लिए सबसे पहली चीज है, एक ब्रांड इंप्रेशन माइंड में होना चाहिए किसी के भी, है ना। YSL हुआ, ईव सान लॉरेन, जितने भी ब्रांड्स हैं ये, इन सबका एक ब्रांड इंप्रेशन आपके दिमाग में है। अच्छा, कि कोको शैनल इज फ्रॉम US, ठीक है, फेंडी इज फ्रॉम स्पेन, तो आप क्या सोचते हो कि अच्छा ये वहां बाहर का ब्रांड है, ये इस जगह का ब्रांड है। इंडियन ब्रांड आप बताइए, कोई आपके माइंड में ऐसा आता है एक इंटरनेशनल ब्रांड इमेज के साथ? है वैसे बहुत सारे ब्रांड हैं, हम लोगों को पता नहीं है, दोज आर ओन्ड बाय इंडियन इटसेल्फ। जैसे द मिलानो करके एक बैग ब्रांड है, दैट इज इंडियन, वो इंटरनेशनल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, वो कैसे, उनकी ही स्टार्टिंग में आपको बताता हूँ। अगर आप किसी भी ज्वेलरी इटसेल्फ इज अ लग्जरी सेगमेंट, जैसे मालाबार है, दे आर डूइंग फिनोमिनल इन UAE। ओके, हाउ दे डू इट, सॉरी मेरा एक कॉल आ गया था बीच में। जब भी आप किसी भी ज्वेलरी सेगमेंट में या हाई एंड फैशन सेगमेंट में किसी के बारे में भी बात करेंगे, तो उसके पीछे हमारा माइंडसेट होना चाहिए ब्रांड बिल्डिंग फर्स्ट। ब्रांड बिल्डिंग कैसे होती है? ब्रांड बिल्डिंग होती है दो तरह से, या तो आपके प्रोडक्ट में इतना दम होना चाहिए कि वो ब्रांड को compete कर पाए। ठीक है, क्या आर यू यूजिंग प्योर लेदर? अभी वेगन लेदर का बहुत अच्छा स्कोप है, जैसे, ठीक है, अगर आप किसी भी, जैसे आप ज्वेलरी इंडस्ट्री की जगह बैग इंडस्ट्री की मैं बात करता हूँ, ज्वेलरी में वॉचेस एंड बैग्स आल्सो कम अंडर ज्वेलरी इंडस्ट्री इटसेल्फ। आप अगर देखेंगे ना, जो मॉय हेनेसी है, LVMH owns many of the ज्वेलरी ब्रांड, बैग्स ब्रांड, लग्जरी लाइंस, तो ये सब आपस में एसोसिएटेड है। तो या तो आपके प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा दम होना चाहिए,
जैसे दामिलानो के प्रोडक्ट में दे हैव यूज द जेन्युइन लेदर, जो इंडिया में अभी तक क्रोकोडाइल लेदर को यूज नहीं करता था, वो बड़े ब्रांड्स ही यूज करते थे। या सेकंड, आपकी मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले यही प्रोडक्ट, अब हाँ एक और मैं आपको नाम बताना भूल गया, ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर सब्यसाची, मतलब ऐसा नाम है ना ये इंडिया के अंदर कि जिसने यूएस में भी जाके तहलका मचाया है। ठीक है, पीपल राइट नाउ आर क्विटिंग एलवी, वट एवर ब्रांड्स आर देयर, लाइक जितना भी शैनल ये सब, दे आर गोइंग फॉरवर्ड विद सब्यसाची। क्यों? क्योंकि सब्यसाची ने अपना खुद का ब्रांड इमेज बहुत स्ट्रांग करा। प्रोडक्ट में तो दम है ही, बट उन्होंने मार्केटिंग ब्रांड इमेज बहुत स्ट्रांग करा। तो आप उस चीज पे वर्क करिए खुशी मैम। ओके, स्टार्ट वर्किंग ऑन टू द सेम डोमेन कि हम कैसे मार्केटिंग के अंदर एक्सपर्टीज हासिल करें, जो मेरे में नहीं थी। मार्केटिंग के अंदर मैं पीआर बहुत अपना अच्छा कर सकता हूँ, वो मेरे को एक अच्छा आता है, मेरे को प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत अच्छा आता है, बट मेरे को मार्केटिंग इतनी अच्छी नहीं आती। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, यू हैव टू फाइंड अ को फाउंडर और अ पर्सन दो द वन हु कैन वर्क फॉर यू, है ना। वो ऐसे उस तरह उस चीज को डेवलप करे जैसे वो आपका ही काम है। मतलब वो बंदे को आप ऐसा ट्रेन कीजिए, अगर आपको आता है, और नहीं आता तो ऐसा बंदा हायर कीजिए जो उसको ब्रांड इमेज दे पाए। तो फॉर खुशी मैम आई वुड से कि आप सबसे पहले मार्केटिंग के लिए ज्यादा फोकस कीजिए। आई गो फॉर, इफ यू वांट टू गेट इनटू ज्वेलरी डोमेन, तो सबसे पहले मार्केटिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग के लिए यू शुड वर्क हार्ड, एज इन यू शुड स्टडी हार्ड। उस पे आप वर्क कीजिए थोड़ा सा, एंड देन यू विल स्टार्ट विद Okay, कुछ sir. भी एक Thank अपना you, एक sir. प्रोडक्ट भी आप निकालेंगे ना डेवलप करके, डिजाइन करके, उसको मार्केट ऐसा Yes, sir. कीजिए कि वही प्रोडक्ट आपका बहुत ज्यादा शाइन एंड ब्राइट आउट हो जाए। Okay, sir. Thank you. तो अभी मैं कहाँ पे था, आपकी क्या सब्सक्रिप्शन मॉडल वाली मैंने आपको बता दी थी, यूनिट इकोनॉमिक्स पे हम आ गए हैं। हाँ, तो अभी सेकंड पॉइंट वी आर डिस्कसिंग कोर बिजनेस कॉन्सेप्ट्स, नाउ वी आर एट यूनिट इकोनॉमिक्स। ओके, सो If you're sharing a PPT, then it is not visible if you are sharing a PPT. so ma'am, I haven't made any PPT. मैंने Okay, बोला then ना it's fine. मतलब I was just thinking that maybe if you haven't, नहीं you might have दो forgotten. आई No वाज worries. थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ पीपीटी, बट मैंने बड़ा अनफॉर्मल सा मैंने सोचा, मतलब वो ना स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन हो, इट विल लुक मच मोर फैमिलियर। Like, it works. It works. We can have lots of questions also. You can carry on. Unit economics. श्योर मैम, थैंक यू। तो उसके बाद में आता है दिस, एज आई सेड, हम इसके बाद यूनिट इकोनॉमिक्स पे आते हैं। तो कॉग्स, सबसे पहले एक यूनिट इकोनॉमिक्स में एक टर्म होती है कॉग्स, लाइक कॉस्ट ऑफ योर गुड्स सोल्ड। एज इन मेरा एक डायमंड रिंग है जिसका प्राइसिंग 1 लाख रुपीज है, आई सोल्ड इट, सो इट इज अ कस्टम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, उसके बाद कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है आपका, प्रॉफिट आफ्टर डायरेक्ट कॉस्ट, जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है उसके अंदर, डायरेक्ट कॉस्ट एज इन मेरा उसको डेवलपमेंट कॉस्ट कितना आया है, उसका प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कॉस्ट एज इन 50,000 है। ठीक है, तो जो उसके बाद हमारा कंट्रीब्यूशन के बाद जो प्रॉफिट मार्जिन बचा, दैट इज आवर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। उसमें से फिर हमको माइनस करना होता है अपना कैक एंड एलटीवी, दैट इज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। एज आई सेड, मैंने ये भी आपसे डिस्कस कराई है कस्टमर एक्विजिशन कैसे होता है थ्रू मैनी पोर्टफोलियो, जिसमें सबसे पहला आपका होता है कस्टमर एक्विजिशन थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू ऑफलाइन मार्केटिंग, थ्रू मीडिया चैनल पार्टनर मार्केटिंग, एंड थ्रू, एज आई सेड, हमने अपनी ब्रांड एम्बेसडर अमायरा मैम, अमायरा दस्तूर को बनाया। वो किस लिए बनाया? क्योंकि उसे एक ब्रांड फेस मिला। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, बट उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा अपनी टोटल सेल से। ओके, कि हमारी जो टोटल सेल हमारा मतलब मंथली या ईयरली, उनके साथ में एक टर्नओवर सेट है, दैट दिस मच वी विल बी पेइंग देम ईयरली बेसिस। ओके, अब आपका वो भी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट में क्यों आएगा? मतलब सोशल मीडिया से तो आता ही आता है, वो कस्टमर एक्विजिशन में कैसे आएगा? क्योंकि वो भी एक मार्केटिंग स्पेंड है, जिसके बेसिस पे, जिस फेस वैल्यू पे people come to us because they say, "Acha, Myra is a brand ambassador of 18 Solitaire. Okay, let us go to 18 Solitaire. It means 18 Solitaire is something." When you minus all of this, you will find the exact profit you are making out of it. Okay. Now, if your CAC is higher and your LTV is low, that means you are burning money. Okay, lifetime value. Lifetime value क्या होता है कि आपका रिपीट कस्टमर कितना है। उस कैक के बेसिस पे मान लीजिए मैंने आज 10 रुपए कस्टमर को रिटेन करने के लिए लगाया, रिटेन नहीं सॉरी एक्वायर करने के लिए लगाया, और उसके बाद में हमारा जो एलटीवी है, उसको लाइफ टाइम वैल्यू जो है उस कस्टमर की, वो हमारी उससे भी ज्यादा जा रही है उसको रिटेन करने की। दैट मीन्स वी आर बर्निंग कैश। अभी एक बार मेरे स्टोर पे बंदा आए, बट उसके बाद में उसको रिटेन करने के लिए मुझे पैसा ना लगाना पड़े। फॉर एन एग्जाम्पल, यू कम टू आवर स्टोर, you buy jewelry from us,
बाय सीइंग अ एड और समथिंग, बट उसके बाद में उसको रिटेन करने के लिए क्या चीजें मैंडेटरी होती हैं? सबसे पहले आपका फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर स्टोर, फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर प्रोडक्ट। अभी मैं स्टोर की बात इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि वो बड़ा मोनोटोनस हो जाएगा कि मैं ज्वेलरी की ही बात कर रहा हूँ। किसी भी डोमेन में हम बात करते हैं, आपका प्रोडक्ट यूज करने के बाद वो वापस कस्टमर आपके पास आए, ठीक है, दैट इज लाइफ टाइम रिटेन वैल्यू। उसके लिए हमको बर्न नहीं करना चाहिए, एंड दैट्स हाउ यू विल स्टॉप मेकिंग एंड बर्निंग मनी। ओके, कैश फ्लो पे हम आ जाते हैं। जो भी कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो इज द ऑक्सीजन ऑफ योर स्टार्टअप। और बर्न मैंने आपको बता ही दिया, हाउ मच यू आर बर्निंग, मंथली अमाउंट इज योर बर्न रेट। सो अभी क्या है, अगर आपका कैश फ्लो पॉजिटिव है और आपका बर्न लो है, दैट मीन्स यू आर प्रॉफिटेबल इन फ्यूचर। हमारे को जो भी हम कंपनी स्टार्ट करें, उस कंपनी में हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमारा जो बर्न है वो कम हो और रनवे जो है हमारा वो हमारे पास ज्यादा हो। रनवे क्या होता है कि हमारे पास जितना भी अमाउंट बचा है, फॉर एग्जांपल आज मेरे पास में कैश बचा है 10 लाख रुपए, तो उससे मैं कितने महीने अपनी कंपनी को चला सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपनी कंपनी को 10 लाख रुपए से 1 महीने चला सकता हूँ। तो वो 10 लाख जो है ना, वो हमारा रनवे हो गया 1 महीने के लिए। उसको हमें बढ़ाना चाहिए। उसको बढ़ाने के लिए क्या चीजें हैं, हमें अपना बर्न कम करना है, कैश फ्लो ज्यादा करना है, ओवरऑल रेवेन्यू ज्यादा करना है, और बफर हमें हमेशा अपने पास रखना चाहिए। और ये मैं आपको एक्सपीरियंस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हाँ, वापसी उसी बात पे आता हूँ जो स्किप हो गई थी। एक पॉइंट ऐसा आ गया था इन 2024 व्हेन वी आर ऑन अ वर्ज ऑफ क्लोजिंग डाउन 18 सॉलिटेयर। बहुत स्पेसिफिक पॉइंट था, एंड आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज डिस्कसिंग इट विद माय वाइफ एंड माय मॉम कि नहीं यार, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा हम बर्न कर रहे हैं एंड वी आर नॉट पॉजिटिव येट। हमने मार्केटिंग में हर चीज में इतना ज्यादा स्पेंड कर दिया है दैट वी आर स्टैंडिंग कैशलेस टुडे। तब वो एक आपने सुना है एक कहावत है, मतलब उस हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं, आविष्कार, आपदा में ही आविष्कार की जननी है ना। मतलब जब बिल्कुल यू आर ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजिंग डाउन समथिंग, तभी आपको एक नया आइडिया आता है। ओके, वो मेरे को फिर एक वर्टिकल दिखाई दिया दैट वी शुड स्टार्ट B2B डोमेन। अभी जो मैंने एक पॉइंट पूछा था, एनीवन फ्रॉम ज्वेलरी बैकग्राउंड, वो मैं बताता हूँ उसके पीछे क्या रीजन था। जो फैमिली ज्वेलर्स होते हैं ना, क्या होता है उनके यहाँ पे, उनके यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं होती फैमिली ज्वेलर्स के यहाँ पे। मतलब सर्टिफिकेशन नहीं होता, हॉलमार्किंग बहुत कम होती है, देन दे आर नॉट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड थ्रू मैनी पोर्टल्स। उसके बाद ब्रांड बिल्डिंग नहीं होता। उसके बाद में सबसे मेन है, बाइफ्रिकेशन ऑफ कॉस्ट नहीं होता। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हाँ कपिल सर, सॉरी, वो इसलिए मैं बोलता हूँ आप मुझे हमेशा करेक्ट करते रहा करो। मैं गलत बोल गया था, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ओके, मिस्टर कपिल, डॉक्टर कपिल शर्मा सर इज हियर, ही इज माय मेंटर। आई वांट यू टू सर अनम्यूट योर माइक प्लीज। मैम, कैन यू जस्ट अनम्यूट कपिल सर? Sir, I've given the permissions to everyone. Anyone can unmute and talk. हेलो, कपिल सर, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? Can't unmute. Ma'am, I think he can't. Can you just try it once? Yes. Now I can. Yeah. Hi, sir. Good evening. Good evening, Ishan. Good कैसे evening, हो? sir. Good evening, madam. How are you? तो वही था, आवश्यकता ही आविष्कार की, आविष्कार। मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, आप हमेशा से करेक्ट करते आए हो मेरे को, तो अरे आपकी तो नहीं, मुझे पल पल पे जरूरत है। I am also learning from you guys. तुम लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अरे नहीं सर, प्लीज, मतलब इट इज आवर प्लेजर के मतलब आप लोगों के सामने मैं बोल भी पा रहा हूँ, वरना तो आप डांट देते थे हमेशा मेरे को क्लासरूम मैं में। पिछले 1 घंटे से तुमको बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ एंड इट्स ट्रूली एन ऑसम सेशन। मतलब मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अरे सर, थैंक यू सर, माय प्लेजर, सर तो सीरियसली। हमको 2-4 और भी बता सकते हैं, मतलब बहुत वेल वर्स्ड है वो, ही कैन टेल अस मोर आल्सो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग सर। हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, तो अभी ना इसके बीच में मैं ये चीज भी बताना चाह रहा था, ऐसा आपके साथ में एक सारथी होना बहुत जरूरत है। जैसे हमारे साथ में कपिल सर हमेशा रहे हैं, जैसे इन्होंने अभी मेरे को करेक्ट करा कि मैंने कुछ गलत बोला, तो उन्होंने वो एकदम करेक्ट करा। वो सारथी ही आपके लिए
ही इज योर co-founder, he can be your co-founder, he can be your mentor, or he can be anyone from your family as well. वहां पे ही जैसे मैंने डिस्कस करा कि अभी मम्मी के साथ, वाइफ के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि नहीं अब तो यार मेरे को ये बंद कर देना है, तो क्या करूँ आगे। हमने एक वर्टिकल स्टार्ट किया, B2B। उस B2B वर्टिकल में क्या करा, जितने भी फैमिली ज्वेलर्स हैं जो बहुत अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है, उनको हमने अपना ब्रांड नेम देना स्टार्ट करा। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप हमसे 25 लाख का माल लीजिए आज के टाइम पे। एक मिनिमम स्टार्टिंग हम करते हैं 25 लाख रुपीज का। हम पास हमारा एक सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं है वो, उसके अगेंस्ट हम उनको इन्वेंट्री भी देते हैं। उसके इन्वेंट्री के अगेंस्ट हम उनको डिजाइन करते हैं, उनकी ग्लो साइन बोर्ड चेंज कराते हैं, उसको 18 सॉलिटेयर की ब्रांडिंग देते हैं फैमिली स्टोर को, और उनके यहाँ अपनी प्रोडक्ट लाइन रखते हैं। तो हमारी प्रोडक्ट लाइन की स्पेशलिटी मैं बता देता हूँ। आई विल शो यू समथिंग ऑन स्क्रीन एज वेल, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। हमारी स्पेशलिटी ये है कि अपार्ट फ्रॉम एंगेजमेंट रिंग्स, हमारे पास मिनिमल ज्वेलरी है। मिनिमल ज्वेलरी ऐसे आज के टाइम पे एक डायमंड नेकलेस की एवरेज कॉस्ट इज 3,50,000 to 4 लाख रुपीज। 18 Solitaire is developing that same product under 1.5 लाख रुपीस। हमारी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, जिससे बहुत लाइट वेट ज्वेलरी बहुत फुलावट के साथ बनती है। वो अभी तक क्या था है, आप ये ना ब्लू स्टोन, मिया, कैरेट लेन के पास ये टेक्नोलॉजी थी। जो नॉर्मल ज्वेलर है ना, वो रीच आउट नहीं कर सकते उस टेक्नोलॉजी को, क्योंकि उनका एमओक्यू बहुत स्पेसिफिक है कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपको 2 CR की देनी है। अब 2 CR की एक फैमिली ज्वेलर कहाँ देगा यार, कि मतलब एक नेकलेस ही आप मेरे 2 CR के बना दो, नहीं बना पाएगा। तो उस चीज को हमने वहां पे एक लूप होल देखा, जो लगा कि यार हाँ ये लूप होल जो है ना, ये हमारे लिए काम करेगा। हमने वो एमओक्यू रिटेन करा, वो डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट हम लेके आए, और उस प्रोडक्ट को हमने पार्टीशंस में, ब्लॉक्स में बना के अपने जो सबऑर्डिनेट ज्वेलर्स हैं, फैमिली ज्वेलर्स, उनको सरपास कर, उनको बोला कि आप हमारे प्रोडक्ट लाइन रखिए, हमारे प्रोडक्ट लाइन के साथ में आपकी ब्रांडिंग हम दूसरी करते हैं, 18 सॉलिटेयर की करते हैं, और हम इसको एक SIS मॉडल बनाते हैं, दैट इज शॉप इन शॉप मॉडल। उस शॉप इन शॉप मॉडल की वजह से राइट नाउ, एंड आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट 18 Solitaire is India's fastest growing natural diamond jewelry brand, as I said। वो इसी वजह से है कि आज हम 32 स्टोर पे खड़े हैं, और मेरे को लगता है जो हमारा टारगेट है, वी विल क्रॉस 100 स्टोर सून इनफ बाय 2026 मिड। तो और इसी स्पीड से अगर टचवुड हम बढ़ते रहे बाय गॉड ग्रेस एंड सारे मेंटर्स और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी 100 स्टोर्स क्रॉस कर लेंगे। वो क्योंकि एक लूप होल हमने ढूंढा, जैसे मैंने बताया ना कि एक बिल्कुल मतलब एक पॉइंट आ गया था कि नहीं अब कुछ नहीं होगा आगे, तो क्या करना है कि क्लोज शट डाउन कर देते हैं। ठीक है, शट डाउन करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं, सोशल एंजाइटी है, बहुत सारी चीजें आ जाती है उसके अंदर। नहीं नहीं, ये नहीं कर सकते यार, कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वो रास्ता कैसे ढूंढा, वो रास्ता ऐसे ढूंढा कि ठीक है, हम क्या करते हैं, जो मैंने अभी बताया, जो एग्जिस्टिंग फैमिली ज्वेलर है उनको चेंज, उनका मॉडल ही चेंज कर दिया। अब उनके पास में क्या हो गया, ट्रांसपेरेंसी आ गई, ब्रांड ट्रस्ट आ गया, क्वालिटी ऑफ वर्क आ गया, वर्कमैनशिप आ गई, सर्टिफिकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आ गया, एंड डिजाइनिंग्स आ गए। अब उनके पास स्पेशलिटी इन डायमंड रिंग्स भी है, उनके पास में कैरेट लेन जैसे डिजाइन भी हैं, ब्लू स्टोन जैसे, और सबसे मेन अफोर्डेबिलिटी। जो 1,03,000 रुपए कैरेट लेन सेल करता है डायमंड VSSI HI कलर क्लियरिटी, वी आर सेलिंग इट फॉर 60,000 पर कैरेट। दैट इज 40% मार्कअप दे आर चार्जिंग यू गाइस। और वो हम कितने में चार्ज, कितना आपको दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि एज आई सेड आई वाज देयर इन साउथ अफ्रीका, बट वो मेरा एंटरप्रेन्योर स्पिरिट तो हमेशा से थी। अब मैं पाम ऑयल में काम तो करता था, लेकिन कोल माइन की तरफ भगता था कि अच्छा पाम ऑयल फील्ड में काम करना है, लेकिन मेरे को डायमंड, क्योंकि मेरा डोमेन तो यही है और मुझे पता था इसमें मुझे कुछ काम करना है। तो आई मेड सम कनेक्शंस ओवर देयर, जिससे मेरी सोर्सिंग बहुत ज्यादा रीजनेबल हो गई। और वो इस हद तक रीजनेबल है कि आज के टाइम पे जो जाइंट ब्रांड्स है ना, वो उनको हम compete करते हैं सोर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उनके यहाँ पे एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, तो दे हैव टू चार्ज मार्कअप ऑन देयर प्रोडक्ट्स, जो अभी हमारा इतना ज्यादा ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं है, जिसकी वजह से वी आर रीजनेबल। इसी वजह से आज के टाइम पे 32 SIS मॉडल आर वर्किंग, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी के साथ में ये सारा ब्रांड ट्रस्ट कस्टमर को मिलता है। आज आप किसी भी शहर में जाइए, एंड सून वी आर कमिंग टू देहरादून एज वेल, तो आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट एज वेल। तो अभी हम राजपुर रोड पे आपके ये हैं, मेरे स्किप हो गया है, सॉरी, माइंड में से नाम, मैं टीम से पूछ के बताऊंगा। पंजाब ज्वेलर्स, या पंजाब ज्वेलर्स के साथ में वी आर एसोसिएटिंग आवरसेल्व्स। ठीक है, तो आपको 18 सॉलिटेयर और पंजाब ज्वेलर पे भी मिलेगा। ये स्टोरी थी जो मैंने बताया कि डिसिप्लिन, हाउ डिसिप्लिन वर्क्स। अब हम आ जाते हैं डिसीजन हाइजीन एंड फोकस, आवर थर्ड सेक्शन। एनी क्वेश्चंस इन बिटवीन, किसी को कुछ इसमें पूछना हो, इफ एनी वांट टू रेज हैंड।
कुछ भी जर्नी से रिलेटेड, अपने आइडिया से रिलेटेड। मतलब बोरिंग हो रहा है यार सेशन, कोई हाथ भी नहीं उठा रहा। Can I speak about my idea? श्योर जी मैम, प्लीज टेल मी। सर बेसिकली सर मुझे एक स्किन कंडीशन है which is called eczema, okay? So सॉरी, कम उसके अगेन, आप सॉरी आई डिडंट हियर यू, प्लीज कम अगेन, कैन यू प्लीज सर स्पीक? मुझे एक स्किन कंडीशन है जो Okay. एक्जिमा, इट्स कॉल्ड। सो मुझे उसी के अराउंड ना कि स्किन केयर ब्रांड हो जो मतलब लोगों को ये ना फील करवाए कि वो एक मेडिकल ब्रांड है, पर ये सिर्फ एक ही मतलब ज्यादातर स्किन प्रॉब्लम जिनके हो उनके लिए मतलब ये फोकस्ड रहेगा। आई बिलीव जैसे मैं जो दवाइयाँ यूज करती हूँ, जो मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, मुझे वो फील कराते हैं कि हाँ मुझे कोई बीमारी है। आई डोंट वांट पीपल टू फील दैट, ओके। एंड मैंने जैसे जैसे बहुत सारे कंपनीज है इंडिया में, जैसे द मिनिमलिस्ट हो गए, द ऑर्डिनरी हो गए, वो बोलते हैं हम आपको हर स्किन टाइप के लिए अलग अलग हम करते हैं, हम अलग अलग फॉर्मुलेशन देते हैं। पर वो मैंने ये चीज नोटिस किया है कि स्किन क्राफ्ट मैंने यूज किया, मेरे फैमिली में सबने सेम फॉर्मुलेशन सबको देते हैं आफ्टर इवन टेकिंग क्विज। तो मुझे Okay. मुझे वो हाँ मैंने ये चीज नोटिस किया है मेरे फैमिली में स्किन क्राफ्ट मेरे कारण बट से वैसे तो उनकी मैंने जर्नी बड़ी औसम है। मैं अगर आपको बोलूं, मतलब इफ यू हैव रिसेंटली हर्ड के वो बहुत मतलब इट गॉट एक्वायर्ड 100%, सो मिनिमलिस्ट वाज acquired by इंडिया यूनिलीवर, राइट? सो मुझे उनकी जर्नी देखे मतलब 1000 करोड़ की कंपनी बना दी उन्होंने। तो इंस्पायर मुझे उसी के डोमेन उसी अराउंड कुछ करना है। तो या साउंड्स ग्रेट। अभी आप उस पे कुछ वर्क कर रहे हैं? आर यू वर्किंग समथिंग फॉर अ प्रोटोटाइप और डेवलपमेंट? एक्चुअली सर्चिंग फॉर मुझे क्या सूट कर रहा है, मैं अपने आप के पे वो मतलब कर रही हूँ इसके कि लिए मैं कुछ वाइट लेबलिंग कंपनीज होती हैं वैसे, जिनके साथ हाँ आप अपना प्रोडक्ट लाइन डेवलप कर सकते हैं, और वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। मतलब आज के टाइम पे वाइट लेबलिंग इज वेरी रीजनेबल। उसके लिए आपको फॉर्मुलेशन फॉर श्योर यू हैव टू टेल, बिकॉज इट इज योर स्किन टाइप, सो यू नो बेटर which formulation मैं you can work on. मैं ट्राई कर रही हूँ कि जो मेरे ऊपर जो काम कर रहा है तो हम्म उसी का मतलब एक्जिमा एक तरह का नहीं होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। हम्म हम्म उसी का स्किन क्राफ्ट ने क्या किया कि वो क्विज लेते हैं कि हाँ किस हिसाब से आपके स्किन का प्रॉब्लम है। तो हम भी हम्म अराउंड सोचिए, बट हाँ फॉर्मुलेशन दूसरे होंगे क्योंकि ऑफकोर्स सबके स्किन टाइप सेम नहीं होते हैं। और इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे हर अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्वमेंट स्टेटमेंट ना, प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं कोई, तो वो ऑटोमेटिकली एक आपका स्पेसिफिक डोमेन हो जाएगा कस्टमर का, जिनके लिए आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, बिकॉज यू कैन कोरिलेट विद योरसेल्फ, दैट्स हाउ यू आर डेवलपिंग दैट प्रोडक्ट, एंड दैट्स व्हाई यू नो द यूज केसेस ऑफ दैट प्रोडक्ट। Are you getting my point? So, as I said, when I was working with 18 Solitaire, I guess it's so nice talking to you, Jia ma'am. So you can just mute your mic. So thank you. So when I was working with, I was thinking of adopting 18 Solitaire into the segment. I thought of what problem it gonna solve. As I said, तो वो हमारे को पता चल गया प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है, बट अगेन उसके बाद में भी एक हर्डल आया, जिस वजह से हमारी ग्रोथ इफेक्ट हुई उस हर्डल की वजह से। Please check out this internship poster. Anyone there? Utsav ji? I guess Utsav, your mic is unmuted. Okay. जिसकी वजह से हमारी Got it. हाँ, मैंने जैसे आपको बताया, तो एक पॉइंट पे जाके हमारी ग्रोथ स्टक हो गई। अब उसके बाद में हमने उसका सॉल्यूशन ढूंढा, एंड राइट नाउ हमारा जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है दैट इज 60% प्लस। हमारा फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू वाज समवेयर 40 लाख रुपीस। पोस्ट दैट हमारा 2024 वी हैव क्लोज्ड एट 1.68 CR, and this year expectation is somewhere means I guess this will be 6 to 7x this year we will be, because our repeat orders are comparatively on a higher side. और उसके अलावा हमारा जो एज आई सेड के SIS मॉडल भी बहुत अच्छा स्ट्रांगली डेवलप हो गया है, तो प्रोबेबली वी विल बी क्लोजिंग 2025 to 26 year by 8.5 CR to 9 CR,
and we are also raising another round of fundraising के लिए हम जा रहे हैं. So that will be again could be a game changer thing into this industry, and hopefully we will be unicorn soon. Working hard onto it. EBITDA हमारे अच्छा एक EBITDA आपको मैं बता देता हूँ. So you know about EBITDA, right? Anyone of you? Hello. Okay, let me tell you. So EBITDA is something like your net margins before tax deduction. Okay, so हमारा जो EBITDA है that is 19.8, close to 20%, जो एक बहुत अच्छा marginable line होता है into this domain, and we are profitable as I said. So that's why we are going for another round of fundraising. Okay, now we will be moving toward next section, that is discipline, hygiene and focus. As I said, इसके अंदर क्या होता है ना, दो तरह के डिसीजंस होते हैं जो हमको लेने होते हैं. ठीक है, एक होता है मतलब लेने नहीं होते, सॉरी, मतलब दो टाइप ऑफ डिसीजंस होते हैं. एक होता है रिवर्सिबल डिसीजन, एक होता है इरिवर्सिबल डिसीजन. जब भी आप किसी भी चीज पे वर्क करें, अपने किसी भी कॉन्सेप्ट पे वर्क करें, किसी भी प्रोटोटाइप पे वर्क करें, किसी भी कंपनी की डेवलपमेंट पे वर्क करें, तो हमेशा ध्यान रखिए वेदर इट इज अ रिवर्सिबल डिसीजन और इट इज अ इरिवर्सिबल डिसीजन. अगर वो रिवर्सिबल डिसीजन है, यू कैन टेक इट इंस्टेंटली. But it is, if it is an irreversible decision, as in you want to hire someone out for a long run, or you want to how to say that, you want to मतलब कैंपेन रन करना, एड कैंपेन रन करना इज अ रिवर्सिबल डिसीजन. या कोई भी जैसे शटिंग डाउन योर कंपनी इज अ इरिवर्सिबल डिसीजन. यू हैव टू टेक टाइम फॉर दैट, है ना. कोई भी ऐसा अगर डिसीजन है जो आपको लगता है कि आई कांट रिवर्स इट आउट, तो उसके लिए हमेशा एक टाइम लीजिए, एक पॉज लीजिए. जैसे मैंने बताया, एक मोमेंट आया था जहाँ पे मुझे लगा कि ठीक है, आई हैव टू शट दैट डाउन, बट उसके लिए मैंने टाइम लिया, और आज उसकी वजह से ही वी आर पॉजिटिव कि हमने टाइम लिया, पॉज लिया, और वो एक डिसीजन इंस्टेंट मोमेंट में, एक अर्ज ऑफ एंगर में या बहुत रैपिडली नहीं लिया. तो इसलिए ऑलवेज टेक रिवर्सिबल डिसीजन. इफ यू वांट यू कैन टेक इट फास्ट, बट इरिवर्सिबल टेक योर टाइम. सेकंड इज 70% रूल. सो डोंट वेट फॉर परफेक्ट डेटा. ओके, जो भी आपके पास डेटा है ना, just try to accumulate data. 70% of that information if you had, decide on that information out. अभी जैसे आपने बोला, जिया मैम ने बोला that she want to start a company into what you said for skin care products. एक्जिमा, आपने एक एक्जिमा बीमारी होती है, आई नो, वो बोन से निकल के वो स्किन में आती है. इट इज वेरी पेनफुल, और उसमें पॉपअप्स होते हैं. तो उसमें आपको क्या है, यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू द इंफॉर्मेशन. आपके पास कितना डेटा, इफ यू हैव 70% ऑफ डेटा, दैट इज वेरीफाइंग के ओके दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट और दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन विल बी वर्किंग ऑन टू इट, देन यू शुड नॉट थिंक of delaying that product, delaying that concept down. You should start immediately. Okay, that is 70% rule. As in, if you want to start something, don't wait for perfect data. Just go ahead with 70% information you have. It if says yes, then go ahead with this. If it says no, then just reject the proposal out. Okay. Now the third point is key scale discipline. Now, kill or scale discipline. Don't be emotional. Kill what doesn't work. Scale what does. मैंने ना 2 ऐड चलाए थे. एक में बहुत ज्यादा पैसा लगाया, जिस ऐड का कोई रेवेन्यू नहीं आया. उसको मैंने मतलब इट वाज इमोशनल ऐड. मैंने सोचा यार अब इसको चलाते हैं, क्योंकि इससे इंक्वायरीज तो आ रही हैं, बट कन्वर्जन ऑफ लीड नहीं हो रहा. फिर भी वो क्या, आपको सोचना पड़ेगा दैट यू हैव टू किल दिस एड कैंपेन और नॉट. यू हैव टू किल और स्केल दिस स्पेसिफिक टास्क यू आर परफॉर्मिंग. तो उसका रेवेन्यू तो कुछ आ नहीं रहा था, बहुत पैसा भी लगा चुके थे, इमोशनल एंजाइटी भी हो रही थी कि इतना पैसा लगाने के बाद में थोड़े दिन और चला के देख लेते हैं, लेकिन वो इंस्टेंट डिसीजन लेना ही मैंडेटरी था. उसको हमने ऐड को किल करा, और हमने दूसरे ऐड को स्केल करा जो इमोशनल नहीं था, जिसमें बहुत पैसा नहीं लगाया था, लेकिन उससे लीड जनरेशन इजीली आ गई इनटू आवर SIS मॉडल. ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट फेज इज बिजनेस फाउंडेशन इन प्रैक्टिस. यार बोरिंग तो नहीं हो रहा? पहले यार ये बता दो मेरे को, मतलब मैं ना बड़ा पढ़ पढ़ के बोल रहा हूँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है खुद को अब बोरिंग सा हो रहा है. मतलब नॉर्मल कुछ अपने क्वेश्चंस आप हैंड रेज करो इफ यू हैव एनी. क्षितिज. Not at all boring. It is too good. श्योर सर, थैंक यू. सर ये डेफिनेटली बोरिंग नहीं है आपका सेशन.
मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि सर जैसे आपके पास मल्टीपल आइडियाज आते होंगे कि ये वाला हम कर लेते हैं, जैसे आपके पास आपकी ज्वेलरी के ऊपर आपका सारा बिजनेस है, तो आपके पास क्या आता होगा, लाइक हम गोल्ड में एक्सपेंड करते हैं या कहीं और एक्सपेंड करते हैं किसी और चीज में, तो सर उसमें आप फिल्टर आउट कैसे करते हो कि लाइक ये आइडिया चलना चाहिए, इसमें ज्यादा वर्क करना चाहिए, इसमें नहीं करना चाहिए? जैसे ये ना बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है मेरे लिए, मैं बताता हूँ। मतलब मैं इतना अनसर्टेन हूँ अपनी चीजों को लेके कि मेरे को रोज नए आइडिया आते हैं और मेरे को रोज लगता है अरे अरे नहीं अच्छा ये कर लेते हैं यार, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। लेकिन फिर वहीं पे ही वो बात आती है डिसिप्लिन वाली। मतलब सोचता मैं बहुत सारी चीजें हूँ कि ये भी करना है, ये भी करना है। रिसेंटली अभी मेरी ना मैम से भी बात हो रही थी, रिश्मा मैम से भी, कपिल सर से भी, दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एंटर इनटू सम अदर डोमेन। एग्रीकल्चर डोमेन के अंदर कार्बन क्रेडिट एक डोमेन है, उसके अंदर वी आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग समथिंग ऑफ आवर ओन। बट वो अभी मैं करूंगा नहीं, इंस्टेंट नहीं करूंगा। मतलब वो आते हैं एक्चुअली क्या है, जो ना बहुत एनर्जेटिक होते हैं ना, उन लोगों के साथ में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो एक जगह टिक नहीं पाते। उनको ये लगता है नहीं यार ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, यहाँ मूव कर जाते हैं, यहाँ मूव कर जाते हैं, ये भी कर लेंगे, सब चीजें अकेले संभाल लेंगे, बहुत सारे नए बिजनेस डेवलप कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो मेरे साथ भी है। मैं बहुत एनर्जेटिक, मैंने जैसे बताया डिबार्ड भी रहता था, लेकिन एनर्जेटिक होने के बाद ही मेरे को ग्राफिक कह रहा है कि सबसे मेन चीज मैं बताता हूँ। ग्राफिक आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में हो, हाँ टू बी वेरी स्पेसिफिक, मैं ये चीज शुरू में मुझे बोलनी थी, मैं बोल नहीं पाया। आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में हो जहां पे ना योर मेंटर्स आर योर फ्रेंड्स। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अभी मैं आपके सामने कपिल सर से बात कर रहा हूँ ना, ही इज नेवर बीन लाइक अ मेंटर टू मी। मतलब ही इज अ मेंटर बट ही इज मोर काइंड ऑफ अ फ्रेंड टू मी। तो आप अपनी कोई भी डिस्कशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से, अपने प्रोफेसर से, अपने टीचर से डिस्कस कीजिए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, उसके बारे में स्टेटमेंट उनसे लीजिए आपको क्या करना है, और कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। जैसे मेरी अटेंडेंस में कंसिस्टेंसी नहीं थी, लेकिन मेरे स्किल को लेके, मेरे प्रोडक्ट को लेके मेरी कंसिस्टेंसी थी कि हाँ मेरे को जाना है यार, मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में जाना है। अभी रोज नए आइडिया आते हैं, फिल्टर आउट करता हूँ कि ये करना है, ये नहीं करना। बट अपनी कंसिस्टेंसी अपने स्पेसिफिक डोमेन के लिए मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर 18 सॉलिटेयर बिकॉज आई नो व्हाट इज द गोल, मुझे वो कहाँ ले जाना है। उसके बाद में वो एक्विजिशन, वो एक बहुत डिफरेंट टास्क होता है, दैट वेदर हाउ यू वांट टू डाइल्यूट द थिंग्स आउट। ठीक है, वो एक नेक्स्ट सेगमेंट है। लेकिन अभी मुझे पता है कि 3 साल मुझे इस कंपनी को देने हैं, और वो इस लेवल पे देने हैं कि वो एक ऐसे पॉइंट पे आ जाए व्हेन सम बिग जाइंट कैन एक्वायर इट। वो क्लियर, आपका फंडा क्लियर होना चाहिए। साइड बाय साइड पैरेलली यू कैन वर्क सम अदर, जिस भी आप डोमेन पे काम करना चाहते हैं वो आप करिए, बट उसके लिए एक पॉज लीजिए। जैसे मैंने बताया ना, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल डिसीजंस, तो वो इरिवर्सिबल डिसीजन है। अभी कार्बन क्रेडिट के लिए आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट, बट उसके लिए भी मैं पॉज ले रहा हूँ। उसके लिए हम एक डोमेन रेडी करेंगे, पहले उसके बारे में पूरा रिसर्च एंड एनालिसिस कीजिए, और जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है वो बिल्कुल कीजिए। So just a moment, I have a comment. So when you are starting, to go for the bringing as a co-founder, early core team members, what did better the more than allows that. Okay. Okay, there is a good question over here from Divyaj Rawat. एक चीज मैं और बताता हूँ। जब हमने 18 सॉलिटेयर स्टार्ट किया था ना, सो एज आई स्टार्टेड एज अ को-फाउंडर, माय मॉम इज अ फाउंडर ऑफ दिस कंपनी। तो वो आपको ना फाउंडर और को-फाउंडर टीम फैमिली में से बनाओ, फ्रेंड सर्कल से बनाओ, या अपने क्लासमेट या किसी भी अपने बैचमेट के साथ बनाओ। सबसे पहला जो उसके अंदर एक पॉइंट होता है ना, दैट इज ट्रस्ट। ठीक है, अभी इसमें एक पॉइंट मेंशन किया है सर ने, दैट आई डोंट नो वेदर दे आर ट्रस्टवर्दी और नॉट। ठीक है, सबसे पहला ही पॉइंट ये है कि जिसको भी आप टीम में लेके चल रहे हो ना, वो टीम के अंदर आपके साथ ट्रस्टवर्दी बंदा होना चाहिए। ट्रस्टवर्दी मतलब वो आपके गोल को अपना गोल समझे। इफ यू आर थिंकिंग टू स्टार्ट समथिंग, मेरे साथ भी होता है। मैं जब ग्राफिक में था, मेरे को रोज सपने मतलब रात को हम प्लान करते थे सब पार्टी करके कि भाई कल से ये बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, और वो सुबह गायब हो जाता था। ठीक है, तो वो एक अलग सेगमेंट होता है पार्टी फ्रेंड्स वाला। वो एक अलग डोमेन होता है जहां पे आपको लगता है कि यार हाँ मतलब ये बहुत बढ़िया आइडिया है, मतलब आज तो हमने ऐसा आइडिया निकाल दिया, कल को अंबानी अडानी फेल कर देंगे। ऐसा कोई आइडिया नहीं होता। और ऐसी कोई टीम जो हम जिनके साथ पार्टी करके ऐसे प्लान करते हैं ना कि उनके साथ हम कल बिजनेस कर लेंगे, अगर वो पार्टी के बाद आप प्लान कर रहे हो तो वो कोई बिजनेस भी नहीं है। इट शुड बी ऑन अ वेरी सीरियस नोट। ओके, वो बिजनेस की स्ट्रेटेजीज, वो बिजनेस की स्किल्स, उसका विजन, एम, गोल, एंड पॉइंट, क्या करना है आपको, वो सब अलाइन होना चाहिए। और अलाइन कब होगा? जब आप दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए ट्रस्ट होगा। तो बी वेरी
कॉन्शियस while choosing your founder or co-founder. ठीक है, ये सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है. So again, there is a question. So they are trustworthy, but don't know if they will stick with the problem when the going gets tough. तो यहीं पे यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, if things get tough and it start getting tough, तो वो मेरे तो फाउंडर कौन था, मैंने बताया ना, मेरी मम्मी थी. अब उन्होंने क्या करा उस मोमेंट पे, उन्होंने ये बोला नहीं नहीं चलाओ, इसके बारे में कुछ और सोचो. वाइफ ने कोई और डिसीजन लिया. अगर उस चीज पे बैकआउट कर जाते, नहीं नहीं हमारा फैमिली बिजनेस है, छोड़ो यार, क्यों इतना सिर में दर्द कर रहे हो, यहाँ से तो अच्छा खासा कमाई रहे, लीव दैट आउट, तो क्या होता वहीं पे वो, मतलब यू हैव टू शट इट डाउन ना. दैट इज अ मेन पॉइंट. मतलब वो ट्रस्ट का मतलब ये नहीं है दे आर ट्रस्टवर्दी बट प्रोबेबली दे कैन बैक आउट. इफ प्रोबेबली दे कैन बैक आउट, दैट मींस दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी. I was also about to say that the answer is in the comment itself. जो तुमने सवाल पूछा उसी में जवाब है, उसको ध्यान से पढ़ो 4 बार. या तो इसके अलावा बिजनेस फाउंडेशन इन प्रैक्टिस हो गया है, मिनी एक्सरसाइज, मतलब ये सब चीजें मैंने लिखी हुई थी यार, बट मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि मैं उसको पढ़ पढ़ के बोल रहा हूँ, मुझे फिर बोरिंग लग रहा था, इसीलिए अब उस चीज को छोड़ देते हैं. अब आ जाता है कि सॉरी टू इंटरप्ट यू. हाँ मेरा प्लीज. एक क्वेश्चन था, लाइक जब आप फर्स्ट टाइम सीड फंड के लिए गए, तो लाइक पहले से उस समय काफी जाइंट्स थे इस सेक्टर में, लाइक आपने कैसे डिफेंड करा? लाइक होता है नई कंपनी कोई भी जाए सीड फंड के लिए, तो डिफेंड करना बहुत हार्ड होता है. बहुत रियलिटी में सब. और पहले एक चीज और मैं बताता हूँ, मैंने मोर देन 350 पिचेस करे हैं जस्ट टू ऑब्टेन दिस स्पेसिफिक. अगेन आंसर कम्स इनटू डिसिप्लिन. 350 पिचेस मतलब 350 डिफरेंट इन्वेस्टर को नहीं करे. कुछ जगह ऐसा भी हुआ कि हम 4 बार पिच करा, मतलब उनको 4 अलग अलग स्टेप तक गए और वो बाद में बैकआउट कर गए. ठीक है, तो ऐसे मोर देन 80 इन्वेस्टर्स थे जिनको मैंने रीच आउट करा. किसी के पास 5 बार मीटिंग हुई, किसी के साथ 6 बार हुई, किसी के साथ 1 बार ही हुई, किसी के साथ हुई नहीं. लेकिन फाइनली आप जब अपने प्रोडक्ट के लिए, पहली चीज मैंने आपको बताया ना, मेरा गोल सेट था कि मुझे इसे कहाँ ले जाना है, और मेरा विजन क्लियर था कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर. क्या मैं प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था एंगेजमेंट एंड स्पेशलिज्म में, है ना, जो इंडिया के अंदर थी नहीं. अगर आपको पता है, मैं दुकान पे बैठ के पहले तो उसका प्रोटोटाइप मैंने देखा, मतलब हमारा एक फैमिली स्टोर है समवेयर अराउंड 17 फीट बाय 40 फीट का. तो हम उसमें बैठते थे पहले, उसमें बैठ के हमने फैमिली ज्वेलरी की तरह उसको रन करा, उस प्रोटोटाइप को रन करके देखा वेदर इट इज फीजेबल और नॉट. फीजेबिलिटी कैसे पता चली, जब मैंने देखा कि मेरी जो सेल्स है वो 3x 4x हो गई स्पेशलिटी बता के, तो 100% प्रॉब्लम तो हम सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. सेकेंड इज उस प्रोडक्ट में दम भी है क्योंकि वो स्पेशलिटी है और हम कुछ प्रोडक्ट के अंदर एक यूनिकनेस भी दे रहे हैं. फिर उसके बाद में एक पॉइंट आता है कि स्पेशलिटी तो है बट क्या वो ब्रांड एसोसिएटेड है, नहीं था. ब्रांड एसोसिएशन नहीं था ना, वो फैमिली ज्वेलरी था. उसी वजह से आई फाउंड दैट वॉइड, आई फाउंड दैट गैप, that yes, we have to start this specific idea into a prototype to practicality to ground, है ना. उस तरह से आपको पता चलेगा. सबसे पहले आपको यही चेक करना है whether are you solving any problem or not. If your product is not solving any problem, 100% product and your idea is worthless. क्योंकि कोई भी चीज, now again there is a question from Rishabh. Sir, being a college going student, this is my learning phase, but according to me, practical knowledge is far better than. What would be my first step according to you, your POV? Obviously, practical knowledge is far better, 100%. As I said कि मतलब मैं तो मतलब एग्जाम भी टाइमली नहीं दे पाता था, तो उसके बाद भी जो मेरी जॉब सबसे अच्छी इसीलिए लगी क्योंकि एक तो आप माइंडली एक्टिव होने चाहिए, आप सोशल होने चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलम में एक्टिव होने चाहिए, एंड यस पढ़ाई भी जरूरी है. मतलब अगर मैं वहां नहीं पढ़ता तो मैं घर आके पढ़ता था यार, मतलब एकेडमिक्स इज ऑल्सो नेसेसरी. You have to be practical in life, you have to be practical whatever you are going through. As in, अगर मैं बात करता हूँ कि 18 सॉलिटेयर के लिए अगर मैं अपने ही स्टार्टअप की बात करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल नहीं होता, बस मैं एक फ्लैम्बॉयंट में आ जाता कि अरे नहीं यार इंडस्ट्री बढ़िया है और मैं इस इंडस्ट्री से भी हूँ, और स्पेशलिटी में देखा है वहाँ पे टिफनी थी यूके में, यूएस में, यहाँ पे इंडिया में नहीं है. टिफनी बना देते हैं, नहीं बनती टिफनी, बिल्कुल नहीं बनती वो टिफनी, मतलब अभी भी नहीं है बट बना दूंगा. ये मुझे एश्योरेंस है कि टिफनी बन जाएगा इंडिया के अंदर. क्यों बनेगा? क्योंकि उसके लिए पहले आपने ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकलिटी चेक करी उस चीज की. 100% you have to be practical. Practical knowledge is far better than having theoretical knowledge. But
theoretical knowledge is also a part of practical knowledge. अगर आपको 2+2 नहीं पता होगा 4 है, तो आप 2+2 4 स्टोर नहीं कर पाओगे. वो तो आपको theoretical knowledge से ही सीखना पड़ेगा ना. पहले बुक से समझ के उसको प्रैक्टिकल बनाओ. Now there is again any other question from the page. Sir, another question I would like to ask is, what is the worst piece of advice someone gave you or you have ever heard? Also, why it is worst according to you? अरे यार, ये कैसा क्वेश्चन है यार? वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस को वर्स्ट कैसे कह सकता हूँ किसी की? हाँ, मतलब होता है ऐसा, बहुत ज्यादा एडवाइस ऐसी आती है. एक मेरे इन्वेस्टर से ही आई थी. उन्होंने बोला कि पीआर एक्टिविटी ज्यादा मत करो. ये मेरे को वर्स्ट एडवाइस लगी थी कि डोंट गो फॉर मच पीआर. उनको ये डर था कि मैं एग्जिट प्लान उनको देके और फिर दूसरी जगह से फंड रेज ना कर लूं. तो वो मेरे लिए एक वर्स्ट एडवाइस मुझे लगा था. बट ऐसे एडवाइस अधिकतर अनटिल अनलेस समवन इज नॉट जेलस ऑफ यू, तो एडवाइस कभी भी वर्स्ट नहीं होती. और हाँ, ओपिनियन तो सबकी लेनी चाहिए. ओपिनियन ऑलवेज मैटर. एडवाइस सबसे लो, उस चीज में फिर फिल्टर आउट करो विच वन इज बेटर. एनी अदर क्वेश्चन? I'd like to ask. Okay. So, Kshitij, I guess you have any question. Can you unmute yourself? Yes, sir. Mm-hmm. सर मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आपने फर्स्ट रिजेक्शन को कैसे फेस किया था? मतलब जैसे आपने पिचेस इतनी सारी दी होंगी, तो आपका जो फर्स्ट रिजेक्शन था उसके बाद आपको कैसा फील हुआ था और सब कुछ की जैसे भी है? हाँ, देखिए, जब मैंने सबसे पहली बार पिच किया था ना, सबसे पहले मेरे को जो फीडबैक आया था वो ये आया था कि इतना हाई कैपिटल इंटेंसिव मार्केट है कि इसमें प्री सीड आपको कोई नहीं करेगा, क्योंकि इतने पैसे आपको कोई नहीं देने वाला. सबसे पहला ही पॉइंट ये आया था मेरे सामने. तो उस चीज को ऑब्वियसली इट हर्टेड मी आउट समवेयर इनसाइड. मुझे लगा कि हाँ यार, इतना पैसा नहीं हो पाएगा. बट मैंने उसको क्या बोलते हैं, सोचा समझा, लेकिन दिमाग पे और दिल पे नहीं लिया. दैट्स वाई मेरे पास में जो सेविंग था, मैंने मतलब फिजिकल स्टोर हमने 80-90 लाख रुपीस लगा के मेरे पास अपनी सेविंग से मैंने वो फिजिकल स्टोर रेडी कर लिया. ज्वेलरी शोरूम जो हमारा है, EBO एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट. और मेरे पास में इन्वेंट्री के लिए पैसा नहीं बचा था कि अब इन्वेंट्री कहाँ से लाऊं. बट मेरे को ये ट्रस्ट था कि जो जिस चीज पे मैं वर्क कर रहा हूँ और जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है ट्राई करके, दैट इट इज वर्केबल, इट इज स्केलेबल, तो 100% कहीं ना कहीं से फंड रेज हो जाएगा. बहुत सारे रिजेक्शन आए, बट वो फाइनली उनको समझ आया इन्वेस्टर्स को दैट दिस वन इज स्केलेबल. और फर्स्ट ईयर ऑफ क्या बोलते हैं, ऑपरेशन में कोई भी कंपनी EBITDA पॉजिटिव नहीं होती. वी आर EBITDA पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी आई एम टॉकिंग अबाउट. होती हैं बहुत सारी. वी आर EBITDA पॉजिटिव एज वेल. सो अनदर क्वेश्चन फ्रॉम रोहित. गुड इवनिंग सर. माय क्वेश्चन इज विच measure I can take to launch my prototype into a running startup. Rohit, are you online? Can you just unmute your mic? I just want to know what type of startup plan you have in your mind. Good evening, sir. Good evening. Sir, actually, I was granted a 75,000 of seed fund as a grant from Uttarakhand government from EDI Dehradun, EDI Gujarat. Mm-hmm. So basically, I have developed my prototype about. I am connecting farmers to directly to the market. I have developed my prototype. Is it a quick farm prototype you are working on? Pharmaceutical. Sir, it is actually it is a type that farmer will negotiate with us by selling their products. So it is a B2B segment, means it is a yes, sir, B2B and B2B. Yes, sir, B2B. Okay, comparatively more of B2B. So yes, are your prototype is into running mode right now? Is it into execution? Yes, sir. Sir, yes, sir. Sir, it is a well developed prototype, but on launching into the running startup, it is not possible for us as we are having less fund. The amount of fund which we get. आपका point यही है ना, मतलब you are having hurdles in raising funds. Yes, sir, hurdles तो नहीं है, ऐसा नहीं सर. MSME से भी बात, मतलब सर फंडिंग में तो आ गया सर. हमारा पंतनगर से भी कोलैबोरेशन हो चुका था. थोड़ा वो सॉइल प्रोफाइल की बात है ना सर, मैं उसका आइडिया तो मैं वो फुल फ्लेज नहीं बता सकता. अगर ये था सर, सर मतलब हमारा MSME, मेरा स्टार्टअप इंडिया में भी नाम आ चुका था. मतलब स्टार्टअप इंडिया में नाम आ गया मेरा. हाँ, मतलब आप उसके लिए स्टार्टअप इंडिया के अंदर अच्छा, you got the grant. Yes, sir. Yes, sir. So 75,000 मतलब 20
मतलब पूरे उत्तराखंड में खाली 20 बच्चों को मिला था ये DUI की तरफ से, EDI अहमदाबाद गुजरात की तरफ से, कॉलेज से, जिसके उनका कोलैबोरेशन था सर। ये DUI जो दून यूनिवर्सिटी है, इसमें DUI EDP कर DUI करके बिल्डिंग है, देव भूमि उद्यमिता योजना सर। इसके थ्रू हमें 75,000 का लास्ट ईयर मिला था वो ग्रांट। तो सर उसकी एक तो वेबसाइट डेवलप्ड है मेरी। प्री रेवेन्यू राइट नाउ? सर अभी तो प्री रेवेन्यू, रेवेन्यू बेस और प्री रेवेन्यू? अभी प्री रेवेन्यू सर। प्री रेवेन्यू है। तो आप एक काम कीजिए, मतलब मैंने अपने उससे बताता हूँ, अगर प्री रेवेन्यू के लिए आपको फंड रेज करना है ना, तो आपको प्रोडक्ट के साथ साथ सपना बेचना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, सपना कैसे बेचना है? यू हैव टू शो द हंगर व्हाट यू हैव इन यू फर्स्ट, कि हाँ मैं इसको स्केल करके इस लेवल पे ले जाऊंगा। यू 100% यू हैव टू गो फॉर फंड रेजिंग फर्स्ट। ओके, गो टू सम आई वुड से इन्वेस्टर्स, नॉट टू VCs, which can give you some seed funding। जो आपको लगता है, पहले आप उसके लिए ना पूरा एक प्रोजेक्ट PPT रेडी कीजिए। पूरा उसमें आप ये लिखिए हाउ मच फंड यू नीड, वेयर यू विल एलोकेट दैट फंड। ठीक है, और हाउ यू विल एलोकेट दैट फंड, हाउ मच रेवेन्यू यू कैन मेक थ्रू इट। पूरा आप उसके अंदर एक DPR बनाइए, डिटेल प्रोजेक्ट। Actually, right now I am having DPR report of my project. As सर I am काशीपुर में भी हमारा कोलैबोरेशन था, I am काशीपुर में भी पिच करा है, MSME में भी पिच करा है हम लोगों ने, स्टार्टअप उत्तराखंड। Yes, सब बेसिकली ये था, जो प्रोटोटाइप है ना वो उसको सर एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि उसके लिए जो हमें फार्मर को हम मार्केट से कनेक्ट कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ह्यूज फंड है, जो रिक्वायरमेंट है फंड की वो अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है फंड की। अब सर बेसिकली आप मैंने एक इन्वेस्टर के पास ना जाके पार्ट ऑफ इन्वेस्टर्स के पास जाइए। जैसे मैंने जो अपना फंड रेज किया था, मैंने एक इन्वेस्टर से फंड रेज नहीं किया, वी हैव 4 इन्वेस्टर्स अलाइंड। ठीक है, आप उसका छोटा छोटा पार्ट उसको स्केल अप करने के लिए देखिए, ऐसा है जैसे हमारे डोमेन में क्या था कि अगर मैं इन्वेंट्री कम रखता तो वो बिल्कुल ही नहीं चलता। तो मेरे को इन्वेंट्री तो बड़ी स्पेसिफिक रखनी थी, और वो एक चंक ऑफ अमाउंट था अच्छा खासा, वो मैं रेज कैसे करता, एक सिंगल इन्वेस्टर से तो आ नहीं रहा था। दैट्स हाउ व्हेन आई थॉट ऑफ गेटिंग टू डिफरेंट इन्वेस्टर्स। मतलब वो उनका एक पूल है इन्वेस्टर्स का, इन्वेस्टर पूल है, जिसके थ्रू मैंने 4 से 5 इन्वेस्टर से फंड रेज किया है। तो अगर आप एक साथ में चंक ऑफ अमाउंट रेज नहीं कर पा रहे हैं, गो टू डिफरेंट इन्वेस्टर्स, ट्राई टू रेज अ पार्ट ऑफ दैट स्पेसिफिक अमाउंट, और फिर आप उसको स्केलेबिलिटी के लिए लेके जाइए। सर ऐसा ऐसा मतलब 3-4 इन्वेस्टर्स से हमने भी बात करी थी सर। बेसिकली क्या है, प्राइवेट सेक्टर में लोग फंड दे देते हैं, पर सर गवर्नमेंट सेक्टर का आपको भी पता है कि गवर्नमेंट सेक्टर थोड़ा लेट ही करती है, क्योंकि सर हमारे तो फंड आया था हमने जाओ ना, ट्राई टू सर प्राइवेट में। सर ये रुद्रपुर पिच करा था हम लोगों ने ना, DIC रुद्रपुर जो सीट खुला है। इसके अलावा आप प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी पिच कीजिए, अपने प्रोटोटाइप को ले जाइए, उसमें आप दिखाइए दैट हाउ दिस इज आवर DPR, this much of fund we need, through this much of fund our revenue model will be this much revenue we will make in 2026, this much we will make in, और year on year growth बताइए आप उनको। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी, EBITDA, ये सारी चीजें आप पूरी DPR, उस पर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही चाहिए होगी, उसके बाद ही आप पिच कर पाएंगे प्राइवेट। इवन दो इफ यू नीड माय हेल्प इन दैट केस, यू कैन जस्ट रीच मी आउट ऑन माय LinkedIn। I'll put my LinkedIn, हाँ, I'll put my LinkedIn link over here। Okay, थैंक यू। मेरे पास एक लिस्ट है इन्वेस्टर्स की, मैं उनको आपको शेयर कर दूंगा, आप उनको रीच आउट कीजिए थ्रू मेल। थैंक यू सर। थैंक यू रोहित जी। अच्छा, अगेन देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम शालिनी। सर, जब आपका लो टाइम था या जब आप लो फील कर रहे थे, हाउ यू स्टे मोटिवेटेड टू योरसेल्फ टू डू इट? हाँ, तो मैंने जैसे बताया, मतलब whenever I feel low, you need to have a good partner. Good partner as in either it can be your friend, it can be your parents, it can be your mentors. In my case, I have my wife is my good partner and my mother is my good partner. So she always keep me motivated. Someone is always there to be motivate you. आपको अंदर से खुद से मोटिवेशन तो आएगी, लेकिन लो पॉइंट पे ना आपको नीचे से पुश देने वाला भी कोई होना चाहिए। Then again there is a question, sir, if you would have to start today from zero। अरे यार, ये वाले क्वेश्चन मत पूछा करो यार, जीरो से स्टार्ट करने वाले मतलब ये बड़ा डर लगता है ऐसे क्वेश्चन से। विद ऑल द नॉलेज यू हैव करंटली, व्हाट मिस्टेक वुड यू अवॉइड, व्हाट you do differently? Also, sorry for throwing too many questions at you. No worries, it's okay. So again, if I have to start something from zero, I'll look forward to ठीक है, मेरी knowledge तो it is into my specific domain, और आपकी Sachin is also there. Okay, just let me answer this question first, then I'll come to you, Sachin. Okay, so as I said, what question it is? If I have to start, if I have to start from scratch.
I think they want to ask कि आपको इतना experience और सब हो गया है, उतनी सारी wisdom को turn back करके और ये कैसे smart बन जाए. I think the intent of the question is from that point. If you had to do it, तो आपकी दोबारा से कौन सी best take होती considering all you've gone through. I feel like that is the essence of the question. Yeah, I know. No, but sorry, I got it. I want just make it little bit more casual, na? That's why I said कि zero से मत पूछा करो. It's okay. Yeah. So as I said, if I have to start something from scratch once again with all the wisdom and knowledge I have, I will again start into that specific domain which I am into because वही मेरी expertise है और मुझे लगता है उससे ही मैं दोबारा से restart and regrow कर पाऊंगा. Apart from that, अभी हमारे mind में एक concept और है. रिसेंटली कमत ब्रदर सेड दैट कि निखिल कमत कि अगर हम एक कैप के साथ ज्वेलरी स्टोर स्टार्ट करें, कैप एज इन, क्योंकि ये बहुत ओवरवेलमिंग एक सेगमेंट होता है. यू एंटर ओवर देयर, यू डोंट नो वेदर यू आर चूजिंग अ 5 लाख रुपीज नेकलेस और यू आर चूजिंग अ 1 लाख रुपीज नेकलेस. सो अगर हम उस पर कैप लगा दें दैट एवरीथिंग हैव अ कैप ऑफ रुपीज 1 लाख रुपीज INR, है ना, कि आप कुछ भी आइए अंडर 1 लाख रुपीज. जैसे वो आपने देखा होगा ना 99 स्टोर, तो यू गो विथ फ्री माइंड कि हाँ ठीक है वहां जाएंगे और वी कैन पिक एनीथिंग I want to. So if we have that specific, if I want to start from scratch, then I'll make this jewelry segment categorized into with the specific cap. 1 लाख रुपए की कैप के साथ हम उसको स्टार्ट एक ऐसा शोरूम बनाओ जिसमें 1 लाख रुपए की कैप हो और आप इजी फ्री माइंड से जाओ. यू चूज एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट एंड यू कैन कम फ्री माइंड, इजी माइंड, के प्रेशर नहीं होता माइंड पे यार वाइफ जाएगी तो ये महंगे वाला चूज ना कर ले. So that's how I'll think I'll put my knowledge into, and once again I'll start into that specific domain itself. And what mistake I would avoid? Yeah, तो mistakes में मेरे को ऐसा लगता है aggressive marketing is also a kind of mistake. अगर आप बहुत ज्यादा किसी भी चीज पे बर्न कर रहे हैं और उसका आउटकम नहीं है, देन यू शुड ड्रॉप दैट प्लान इमीडिएटली. वो मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी है कि हमने बहुत ज्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग करी स्टार्टिंग में और उसमें हमने बहुत ज्यादा बर्न किया जिसकी वजह से हमको उस समय रिजल्ट नहीं आ रहे थे. बट पोस्ट दैट आई रियलाइज दैट इट वाज आवर मिस्टेक. दैट्स व्हाई आई लिमिटेड डाउन माय एक्सपेंसेस ऑन टू aggressive marketing and focused more onto product development. Anything else? Yeah, Sachin, please come. Unmute yourself. Sir, I am audible, sir. Yeah, you are audible. Sir, what is the most important thing to run a business? To grow a business or to do a business? Yes, sir, to do the business. To do the business. वो पूरा टॉपिक शुरू से यही चल रहा है. मतलब आपकी कंसिस्टेंसी इज द बेसिक पॉइंट. बिजनेस इज नेवर बीन लाइक के इसको छोड़ के ये कर लेंगे. अगर मतलब उसके बाद ना आपके पास में इफ यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस देन थिंक, मतलब आप हमेशा माइंड में ये सोच के रखो कि वी हैव नो बैकअप प्लान, नो पॉइंट ऑफ टर्न आउट. अगर आप किसी भी चीज को स्टार्ट कर रहे हैं देन बहुत सारे फेल स्टार्टअप्स होते हैं और हमारे सेगमेंट में तो बहुत ही ज्यादा होते हैं. बट अगर आप पहले ही सोच लोगे कि हाँ यार फेल स्टार्टअप होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, तो फिर आप कभी भी एक सक्सेसफुल स्टार्टअप ही नहीं बना पाओगे. आप पहले ही स्टार्टअप को ये सोचो कि आई वांट टू मेक इट सक्सेसफुल वॉट एवर पॉसिबल. देखो डेस्टिनी से ऊपर तो कोई नहीं हो सकता, ये मैं पर्सनली मानता हूँ. डेस्टिनी एक ऐसी चीज है कि मतलब हार्डवर्क एक मेरे डैडी एक कहावत कहते हैं मेरे फादर, एक लॉकर की 2 चाबी हैं, दोनों चाबी पे एक पे हार्डवर्क लिखा है एक पे डेस्टिनी. तो इफ यू पुट हार्डवर्क वाली चाबी तब भी लॉकर ओपन नहीं होगा, इफ यू पुट डेस्टिनी वाली चाबी तब भी लॉकर ओपन नहीं होगा. यू हैव टू पुट बोथ द कीज टुगेदर. यू हैव टू वर्क हार्ड साइमल्टेनियसली, बट डेस्टिनी से ऊपर भी कुछ नहीं है. अगर वो फेल होना होगा प्रोबेबली इट कैन, बट आप अपनी तरफ से मेहनत ये करो, आई वांट टू मेक इट सक्सेसफुल. यू हैव टू वर्क हार्ड और वो आपको ना नो बैकअप पॉइंट होना चाहिए कि नहीं यार आई वांट, मैं मतलब क्विट नहीं करूंगा इस चीज को लेके, और वो डेस्टिनी की चाबी साथ में लगेगी तो 100% यू विल विन द सिचुएशन. Ishank, with that being said, like I also want to ask one thing. Yeah, sure, ma'am. Many times, we get students who want to talk about their ideas. But many times, like you, agar aapke paas thoda sa bhi experience, exposure hai, you would be able to see whether it will work or it might not work. But the kid will get adamant ki nahi, this is the thing. So wo jo never, the thing that you shared, ki, don't give up or, don't turn back. वो कई बार ना fatal हो जाता है, because that kid will be so rigid कि वो break हो जाएगा instead of taking a pivot. So, that being said,
I wanted to ask if you can enlighten the students about the importance of pivoting, importance of admitting कि हाँ अब ये चीज it might not work, so I might as well make a fresh start. Because बहुत बार ये होता है just because जैसे अगर मैं ही personally कुछ काम कर रही हूँ, मैंने किसी चीज में 100 दिन लगाए हैं, on day number 101 I have this realization कि maybe it will not work, and it is a very crystal clear realization. So it becomes very hard to actually make the pivot and restart from zero. जबकि स्मार्ट चॉइस यही है दैट you restart with all that. Obviously मैम, because वो ना एक इमोशनली कनेक्शन हो जाता है. यू थिंक अरे नहीं यार, मतलब सोसाइटी क्या बोलेगी उस बारे में, और मैंने इतना टाइम दे दिया इस चीज को लेके. इफ आई बैक आउट ओवर हियर देन मतलब somehow it will ruin my image, but this is not the point. You should make a fresh start in terms of when you are feeling that nothing is working out. Okay, एज इन के जब मेरा एक वो पॉइंट आया था, डाउन फेज आया था 18 सॉलिटेयर में, दैट मोमेंट आई फेल लाइक अब कुछ वर्क नहीं कर रहा है, बट उस समय एक आइडिया निकल के आया, इट वर्कड आउट. इन केस, जस्ट इन केस भगवान ना करे अगर ऐसा होता, इट हैडंट वर्कड आउट, तो उस चीज को लेके मैं बैठा रहता, उस ओवर एक्सपेंसेस को मैं करता रहता, एंड समहाउ जो मेरे पास में अपने एसेट्स हैं मैं उनको भी खो देता. तो अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ इरिवर्सिबल डिसीजन, बट यू हैव टू एक्ट वेरी rigid and firmly onto it कि अगर वो नहीं काम कर रहा है then let it go. जैसे हर चीज में होता है ना, let it go, वो जाने दो, फिर उसको try to make a fresh start. If nothing is working, you have to put your 100% first. 100% as in try to make everything, every outcome possible वाली जो भी आपकी सिनेरियो है ना, वो आप उसके लिए अप्लाई करो. उसके बाद भी आपको लगता है यार अब नहीं हो रहा और मैं इतना इसमें समय दे चुका, लेकिन मैं उसको ड्रैग करूं रिग्रेसली, उसको मतलब खींच रहा हूं, तो कोई फायदा नहीं है. फिर उसको आप ड्रॉप कर दो, बिकॉज दिस मीन्स दिस इज नॉट मेंट टू बी. ट्राई समथिंग न्यू, लेट हैव अ फ्रेश स्टार्ट. और प्रोबेबली हमने जो एक और मैं उसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा, जैसे मैंने बोला ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने उसके लिए सॉल्व नहीं करी होगी. हम कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार ये प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो सिर्फ हमारे लिए बढ़िया होता है. आप समझे कि मुझे लगता है यार ये रिंग बहुत प्यारी है, लेकिन हर किसी का क्या है ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. हमने एक प्रोडक्ट बना लिया, या हमने एक प्रोटोटाइप बना लिया, हमने एक बिजनेस आइडिया सोच लिया, हमें लगता है यार ये तहलका मचा देगा और अब मैं इसको छोड़ नहीं सकता, मैंने इसे इतना समय दे दिया. बट इज इट एक्चुअली सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम ऑन ग्राउंड? इज इट एक्चुअली मेंट फॉर पीपल आउट देयर? Probably it is meant for you, but it is not meant for जो अपनी इंडिया पॉपुलेशन है 120-140 करोड़ की, उनके लिए नहीं है. Then what's the point of doing it? हम सिर्फ अपने से उसको रिलेट करके if we are developing something, then no point of doing it. तो उसके पीछे एक पहले मार्केट रिसर्च करो, एनालिसिस करो, उसके बाद में उस प्रोडक्ट को डेवलप करो, ट्राई टू मेक इट वर्क एज मच एज पॉसिबल. नहीं होता है, then let's restart. Yeah, I think this is also one of the most important, things to keep in mind while talking about the mindset of a founder. You should know when to make a fresh start, when to restart the things, or accept, what is right, what is wrong. और हर चीज के लिए, your mind should be open enough. Many times it is a restart, but many times it is like taking 5 steps back and then jumping 20 steps forward also. So the ability to adapt. That's the main point, ma'am. अगर मैं आपको बोलूँ ना, ये आपने बिल्कुल एकदम ऐसी बात बोली है जो मेरे साथ हुआ है. मैं सच में बता रहा हूँ कि अभी जब मैंने बताया ना, when I was about to quit this thing out in 2024, मैंने वो स्टेप बैक ही करा. सबसे पहले मैंने जो वर्कमैन, मतलब जो हमारी ओवरहेड एक्सपेंसेस थे ना, क्योंकि बहुत सारी टीम हायर करी हुई थी, सबसे पहले मैंने उसे स्कूट आउट करा. सॉरी टू से दैट, बट वो करना मैंडेटरी था. अगर मैं नहीं करता तो वो बंद हो जाता स्टार्टअप. Exactly. Anything else? I would request, like anyone else, if you have any questions, you can ask, because we've taken too much of time, Ishank sir ka bhi. And this has been one of the nicest sessions, Ishank. If you feel like boring nahi tha bilkul bhi, you were judging yourself. Thank you so much, ma'am. It's such a pleasure to hear these words from you. I feel like they were able to relate. That is the thing, because many times you're not able to relate. Please. So you were quite relatable, and that is the thing. I feel like that is why students were able to ask those questions and have that, casual dialogue with you also. So it's a great session. It was a great session. Anyone else who has any questions, they can please put them in the chat box. It would be great. Then we can go towards the winding up of the session. Just one thing more I want to discuss, मैम, over here. एक बात मैं बताता हूँ. एक ना हमारा इंटरेक्टिव सेशन हुआ था in 2015 at Graphic Era itself. I guess कपिल सर को याद होगा वो. तो ना क्या हुआ था, मतलब
मैं बड़ा जॉली नेचर का रहा हूँ स्टार्टिंग से ही, मतलब मैं आई वाज नेवर बीन सीरियस इनटू माय लाइफ, आई वाज सीरियस अबाउट माय टास्क बट नेवर बीन सीरियस इनटू लाइफ। तो इंटरेक्टिव सेशन था, हमने मतलब आई डोंट रिमेम्बर वो कौन सा हॉल था जिसमें हुआ, उसके बाद में विधानसभा weekend। हाँ हाँ हाँ, विधानसभा में था सर। तो उसके बाद में क्या हुआ, सर ने बोला कि चलो चलो आओ एक बार ना क्लास को भी इंटरेक्टिव सेशन कर देते। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा वहां पे, मतलब वो मजाक वाली बात है, डोंट टेक इट सीरियसली एनी वन ऑफ यू। मैंने पूछा यार तुम में से 90 से ऊपर वाले कौन कौन है यहाँ पे। तो उसमें 7-8 जनों ने हाथ उठाया। मैंने बोला कि तुम्हारा ना ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, ये जो 60-70 वाले हैं इनका ज्यादा होने वाला है। क्योंकि वो मैं खुद रिलेट कर पा रहा था, मतलब इट वाज वेरी जस्ट फन मोमेंट। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब 90 वाले ऑल्सो नहीं, 90% वाले ही ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। वो मैं खुद से रिलेट कर पा रहा था ना, ऐसे कि मतलब मैं 70-80 परसेंटाइल वाला था। तो मेरे को लगता था यार ठीक है कि हम जैसे जो लोग हैं ना वो ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। तो हमेशा कन्वर्सेशन में इसलिए लाइट रखता हूँ क्योंकि एक तो वो ब्रदरली फील आनी चाहिए सबको, मतलब इट शुड नॉट लुक लाइक अभी मैं थोड़ा सा ना पढ़ के बोल रहा था और मुझे खुद को लगा यार ये मैं बोरिंग कर रहा हूँ बोल के। अब ये सब चीजें समझाने की जरूरत नहीं, कोई क्वेश्चन होगा किसी का अपने आप पुट ऑन कर लेगा। बट सबसे मेन चीज ये है कि आपको समझना क्या जरूरी है, यहाँ पे स्टार्टअप इंडस्ट्री के बारे में क्या समझना जरूरी है। मेरे एक्सपीरियंस से जो आप सीख सकते हो वो आप पूछो मुझसे। आपके मन में कोई स्टार्टअप है, उससे रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए। अच्छा मैं एक चीज और बताता हूँ, हमारे पास में कुछ इन्वेस्टर्स लिस्ट है, जो हमारा ग्रुप ऑफ पीपल है, जो हम साथ में ना मतलब एक तरीके से फ्रेंड सर्कल जिसने एक दूसरे को रीच आउट करा है वो हम आपस में शेयर करते हैं। वैसे तो आप एआई के थ्रू आज के टाइम पे उससे इजीली यू कैन फाइंड इट आउट, बट वो हमारा उनके साथ में पर्सनल कनेक्शन है। तो वी कैन इजीली get you associated with them in case if you have anything which is very phenomenal, you feel that this thing can help us out। तो आप मुझे एनी टाइम यू कैन रीच मी इफ यू वांट माय आईडी फॉर लिंक्डइन, आई विल टाइप इट ओवर हियर। एनीवन नीड माय पर्सनल नंबर, जस्ट आस्क मी, आई विल शेयर इट दैट वन विद यू आल्सो। अभी किसी का क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, एनीवन, एनीथिंग, एनी एक्सपीरियंस इफ एनीवन वांट टू शेयर? I'll put that one in my in the DM itself. That's my username for my LinkedIn, and send you personally my invitation, my personal number. I guess questions सबके पूरे हो चुके हैं. No other questions over here. So shall I wind up this session now? Yes, sir. We were really glad to have you on board, and you were really able, the students were really able to connect with you and actually ask their questions. This was really, as Sarishma ma'am mentioned, one of the best sessions we had in Founders Launchpad. My pleasure. So it was really nice talking to you all guys. And seriously, एक चीज मैं लास्ट में जब मतलब कंक्लूड करते हुए बोलूंगा, देखो मैं तो खुद ग्राफिक एरा से बहुत रिलेट करता हूँ, मतलब आई हैव बीन टू ग्राफिक एरा पोस्ट कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन मेनी टाइम्स। ठीक है, उसके अलावा मैं आज भी, मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल थे, जूनियर थे, सीनियर थे। अच्छा हाँ, एक चीज और सबसे मेन मैं इसमें बताना भूल गया, नेटवर्किंग इज ऑल्सो अ की टू सक्सेस। ऑलवेज कीप योर नेटवर्क अलाइव। आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, आपके मेंटर्स, सरिश्मा मैम, कपिल सर, एनीवन ओवर हियर, ट्राई टू कीप कनेक्टेड विद ईच अदर। क्योंकि जो नेटवर्क है ना, वो आपको बिजनेस भी देते हैं, वो आपको ग्रोथ भी देते हैं, वो आपको क्लियरिटी भी देते हैं। तो हमेशा अपने नेटवर्क को हमेशा लाइव रखिए। आज भी मैं ग्राफिक एरा के मेंटर्स, टीचर्स के साथ में एसोसिएटेड हूँ, अपने सीनियर्स के साथ में। मेरे बैच से जो 2 साल ऊपर, 3 साल ऊपर के सीनियर थे ना, तब वो मुझे सबसे सबसे आज भी मेरी बात होती है, एंड आई एम पर्सनली कनेक्टेड विद देम। तो आप अपना नेटवर्क बहुत स्ट्रांग रखिए, बिकॉज दैट ऑलवेज गिव यू, सबसे पहली चीज तो एक स्ट्रेस आपका खत्म करते हैं आपके नेटवर्क, है ना, आप उनसे अपने मन की बात खुल के कर पाते हो। ये मैं अपने पर्सनल आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। हमेशा अपने दोस्त यार, सीनियर जूनियर सबको बांध के रखो। ऐसा नहीं कि कॉलेज खत्म हो गया, ठीक है, कनेक्शन टूट गया, अब कुछ अलग नया फ्रेश स्टार्ट करते हैं। पुराने कनेक्शन से हमेशा एसोसिएटेड रहो। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी में है जहां मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि इट वाज अ यूनिवर्सिटी, ऑलवेज बीन अ फैमिली टू एवरी वन ऑफ अस।
यहाँ पे टीचर्स आपको कभी टीचर जैसे नहीं लगेंगे, लेक्चर आपको लेक्चर जैसे नहीं लगेंगे, एंड सच्चा आई वुड से अमेजिंग थिंग ओवर हियर इट इज कि आप इजीली सबको अप्रोच कर पाते हो। वरना मेरे साथ में सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर फ्रॉम एमईटी यूनिवर्सिटी, वो बोलते थे यार तुम अपने सर से ऐसे फोन पे बात कर लेते हो। मैंने कहा हाँ यार ये तो बड़ा कॉमन है हमारे यहाँ तो। कह रहा है ऐसे कैसे कर लेते हो? मैंने कहा भाई हम तो कर ही लेते हैं ऐसे बात। कह रहे यार हमारे यहाँ तो मतलब उनको मेल करना पड़ता है छोटी छोटी चीजों के लिए। तो आप इस चीज को ना मतलब ये सोचिए, यू आर सो लकी दैट यू आर इनटू दिस यूनिवर्सिटी एंड यू आर एसोसिएटेड विद सच मेंटर्स ओवर हियर। ठीक है सर, Yes, sir. एवरीवन। Yes, I would just take a moment for all of you and you can fill out the attendance form which is shared in the chat. And tomorrow, as already mentioned, we have Mr. Nitin Chandola, who is the co-founder of Sunfox Technologies. And post the session, we'll be having networking mixer as well. So, sir has already mentioned that how important networking is, and he is still connected with the network. So, yes, we are onboarding Mr. Nitin Chandola with us tomorrow for the session. And yes, thank you so much, sir, and thank you, everyone. Thank you everyone. Thank you, Good night. Shank. I've shared your profile with the students also, the LinkedIn profile, right? Sure ma'am, thank you so much. It's such a Thank you. nice Thank you for joining. Thank you Kapil sir, thank you so Thank much. you. Thank you, brother. Thank you, Thank you. ma'am. Okay. Thank